صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے میں ساجد حسین اور عمارہ صدیق کا السلام علیکم. اور صبح 10 سے 12 کے درمیان آپ ہفتہ اور اتوار کو صبح سویرے ایک انفارمیٹیو مارننگ شو دیکھتے ہیں. اور آج بھی ہم بہت سارے لوگوں سے آپ کو ملوائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا, ان کی ایکسپرٹیز کیا ہیں, وہ کتنے ویژنری ہیں, انہوں نے اس ملک کے لیے وہ کہتے ہیں نا اپنے حصے کی شمع جلائی ہے یا نہیں. بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں. ہمارے شو کا فارمیٹ آپ جانتے ہیں. پھر ان سے کچھ تیکھے کچھ تگڑے سوال بھی ہم کریں گے, چونکہ آپ کی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے یوز لیس کوسچنس نہ کریں, لائک صبح کب اٹھے تھے, ناشتے میں کیا کھایا تھا, کپڑے کون سے آپ کو پہننا پسند ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں ان سوالات سے ذرا ہم اجتناب کریں. اور میں تعارف کرواؤں, سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہ ایک ڈاکٹر موجود ہیں, اور پھر ڈاکٹر کو ہم کہتے ہیں جی خدائی پیشہ یہ. آپ ڈاکٹر فیضان حسن سر فزیوتھراپسٹ ہیں. پہلے تو میں ان کو خوش آمدید کہوں گا. سر خوش آمدید. اور پھر مارننگ شو میں صبح صبح لائیو کراچی شہر میں آنا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے یہاں ٹریفک کے تو معاملات ابھی تک صحیح نہیں ہوئے. دوسرے جی میرے گیسٹ ہیں, آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ NLP کوچ ہیں اور آپ کا نام ہے جی زبیر احمد. زبیر بھائی آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. اور ایک ویمن, ایک لیڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, اور آپ TS بیوٹی سیلون کی CEO ہیں, آپ کا نام ہے طاہرہ. کیسی ہیں آپ طاہرہ؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. چلیں جی, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ ہمارا جو پلان ہے اب اس نے اڑان بھر لی ہے. پہلے طرح جو ہمارے فزیوتھراپسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب اور پروڈیوسر صاحب, آپ کے لیے اسپیشلی بہت شور ہے میرے کان میں, ذرا آڈیو جی اب بہتر ہو گیا, اب بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فزیوتھراپسٹ کو ذرا بتائیں نا, یہ آپ کیا کیا فزیو میں آ جاتا ہے, کس طرح آپ اپنے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا شارٹ انٹروڈکشن کرا دوں. میرا نام ڈاکٹر فیضان حسن ہے اور میں سینئر اسپورٹس فزیوتھراپسٹ اور پین مینجمنٹ ایکسپرٹ ہوں. سب سے پہلی بات تو آپ نے جو ویژن کی بات کی کہ ہم کس ویژن کو لے کے چل رہے ہیں, الحمدللہ آئی ایم ینگ, اور میرا جو اس وقت جو ویژن ہے میں ڈیل کرتا ہوں اسپورٹس میں ڈیل کرتا ہوں ینگ ایڈلٹس کو. ینگر ہماری جو پاپولیشن ہے لگا لیں 12 سے لے کے 25 سال تک 30 سال تک, یہ پاپولیشن میرے پاس بہت آتی ہے. تو میرا ایک یہ ویژن یہ ہے کہ کراچی میں کوئی بھی جو بھی اسپورٹس کھیل رہا ہے یا اسپورٹس سے جس کا تعلق ہے, یا ہم اولڈر ایج میں ہم دیکھ لیں, جیریاٹکس پیپلس کا دیکھ لیں, پیڈز میں دیکھ لیں, تو میرا یہ ویژن ہے کہ کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ فٹ رہے اور انجری فری رہے اور اپنی لائف میں جو وہ چاہتا ہے چیزیں کرنا وہ آسانی سے کرے. اچھا, یہ آپ کا ویژن تو بہت اچھا ہے, لیکن میں نے ایسے بھی نوجوان دیکھیں جو کہ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں تو ہیں لیکن صرف وہ اسموکنگ بھی کرتے ہیں. تو پھر یہ اسپورٹس میں اسپرٹ تو نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسموکنگ آج کل بہت زیادہ عام ہو گئی ہے, حالانکہ وہ جس کو بھی دیکھیں ہر دوسرا آدمی اور الیکٹرک جو آج کل وہ چل رہی ہیں وہ بہت کامن ہو گئی ہیں, حالانکہ بہت نقصان دہ, بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو پھر کیسے آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ دادا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف آپ کا فزیکل اتنا آپ پہ برڈن ہے اور آپ پھر ایسی چیزوں کا استعمال کرو گے تو پھر کیسے اچھے اسپورٹس مین بن پاؤ گے؟ میں بالکل اپنے جو ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, جو اسپورٹس مین آتے ہیں, اسپورٹس مین تو خیر بہت ہی کم میں نے دیکھا ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں جو لیتے ہیں, میں ان کو بالکل ہم منع کرتے ہیں کہ یہ اسموکنگ از ناٹ اے گڈ ہیبٹ اور یہ نقصان دہ ہے اور لانگ ٹرم آپ کے لنگس کو, آپ کی ہیلتھ کو نقصان پہنچائے گی. تو بالکل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, فزیوتھراپی از بیسکلی یہ آپ میڈیسن پہ نہیں کرتے ہیں, آپ کی مشینز وغیرہ ہوتی ہیں, آپ اس پہ جو ہے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی النیس ہوتی ہے, انجری وغیرہ, آپ ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. اور دیکھا جاتا ہے آج کل تو ہر جگہ فزیوتھراپسٹ کھل گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو ہے ان کا لوگوں کو بینیفٹ بھی نہیں ہو رہا. تو ایک اچھا فزیوتھراپسٹ اور ایک فیک فزیوتھراپسٹ, اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. اچھا, فیک فزیوتھراپی ہوتا ہے کیا بھائی؟ نہیں, وہ جیسے وہ میں ذرا میں ایلیبریٹ کر دوں. اچھا, جب ہم اس میڈیا انڈسٹری میں آئے تو ہمیں ایک ٹرم پتہ چلی, عطائی ڈاکٹر. بولتے تھے ڈاکٹر سنا تھا, یہ عطائی کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ تو بولا یار یہ دے ہیونٹ ڈگری نا, ان کے پاس کوئی ڈگری وگری نہیں ہوتی, بس یہ
وہ कंपाउंडर बने और सीखा ड्रिप लगाना और किसी पसमानदा इलाके में क्लिनिक खोल के बैठ गए। जी अब बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया, ये मुझे बल्कि अच्छा लगेगा इसका जवाब देना कि देखें जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैंने 5 साल की पढ़ाई की है, इसके अलावा 1 साल हाउस जॉब की है, देन इसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया है, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। तो मेरी तकरीबन आप लगा लें कि 5 साल एजुकेशन, 2 साल मास्टर्स, तो 7 साल तो हमने पढ़ा है। अच्छा इसमें यह है कि जैसे कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा प्राइवेट कुछ क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे होता ये है कि 1 साल या 1.5-2 साल का आई थिंक डिप्लोमा, इसमें डिप्लोमा तो नहीं कहूँगा, टेक्नीशियन कोर्स होता है, तो वो बेसिकली कुछ इदारे हैं जो उसको करा रहे हैं। और टेक्नीशियन से मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ टेक्नीशियन के, वो बिल्कुल हमारे साथ काम करते हैं, हमारे सुपरविजन में काम करते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि जाहिर सी बात है वो अपने अपने क्लिनिक्स खोल के बैठ जाते हैं, पेशेंट को डील करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलत ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि लोग शिकायत करते हैं कि हमने फिजियोथेरेपी करवाई थी लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, तो फिर उसमें लोगों को जो है ना वो अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, बेसिकली जो टेक्नीशियंस हैं या फिर जिन्होंने ऐसे सीख लिया किसी क्लिनिक में, वो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो गलत है, और उसके खिलाफ हमारी पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन ने बड़े स्ट्रॉन्ग इकदाम उठाए हैं, उनको मना किया है, उनको रोका है इस काम से। लेकिन जैसे मैं अपनी जो प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी जो पूरी टीम है, मैं उनको सख्ती से मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपने डायग्नोज करना है। अब बिलफर्ज हमारे पास कोई भी मरीज़ आता है ना, 1 से 1.5 घंटा तो हम कहीं नहीं लगाते उसकी डायग्नोसिस पे। देखिए अगर सही डायग्नोस होगा, सही उसको हम पकड़ लेंगे कि भाई क्या बीमारी है, किस मसले के लिए आ रहा है, तो हम सही ट्रीटमेंट कर लेंगे। और हमारे पास ऐसा होता है कि मरीज आते हैं पता नहीं कहाँ से घूम के, इतनी दवाइयाँ खा के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 से 2 दिन में बेहतर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायग्नोस पे करते हैं कि डायग्नोस उनका अच्छा होगा, देन ट्रीट करना उनको आसान होगा। 1 से 2 दिन में जब उनका पेन रिलीज हो जाता है, आप उनको हॉस्पिटल से रिलीज करते हैं या कहते हैं पड़े रहे मियाँ बिल बढ़ाते रहे? नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो ये बल्कि हमारे यहाँ तो इतना रश होता है, कभी आप आके देखें कि मैं तो कहता हूँ कि भाई आप 2 दिन का है तो आप 1 दिन में लग रहे ठीक हो जाएं। अब मेरी दुआएं आपके साथ हैं। क्या बात है। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, ताहिरा के पास आते हैं। ताहिरा, ट्रैफिक का सामना हुआ जब आप आई थी या कि नॉर्मली आप टाइम पे आ गई? आज हाँ बिल्कुल टाइम पर आई हूँ मैं, ट्रैफिक इतना नहीं था। सही। चलो शुक्र। ताहिरा से खूबसूरती के हवाले से बात करते हैं, ताहिरा चूंकि उससे लॉन हो रहा है, और तो ताहिरा में इस हवाले से बताएगा, खूबसूरती जो है ना मर्दों और औरतों के लिए यकसा है, ठीक है? अब हर कोई अपने ऊपर वर्क करने लग गया है, तो आप हमें बताइएगा आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है मर्दों में और औरतों में, क्या अपने आप को देखते हैं, क्या मेकअप ट्रेंड चल रहा है, वो बताएं। सबसे पहले तो ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे ऐसा है कि मर्द भी फैशन करते हैं और औरतें भी कर रही हैं। फैशन मर्द भी कर रहे हैं और औरतें भी कर रही हैं। ट्रेंड जो चल रहा है अभी, सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो हाइड्रा फैशियल का है। सही, ठीक है। और हर घर में पहले ऐसा होता था, पहले का टाइम ऐसा होता था कि औरतें नहीं जाती थी रूटीन में, सैलून जाना, क्लींजिंग करवाना, फेशियल लेना, वो एक नहीं था। वो कोई एक ख़ास इवेंट का इंतज़ार होता था कि शादी आएगी, मामू के घर में शादी है या इसके घर में शादी है, जब जाके इवन के ब्राइड भी अगर वो बन रही है तो अपनी शादी के टाइम पर ही सर्विसेज लेती है। लेकिन ये वाला जो टाइम है ये बड़ा बेहतरीन टाइम है, यानी कि हर कोई अच्छा, अब आप समझ रही हैं कि मर्द भी जाते हैं, फेशियल्स वगैरह लेते हैं और सारी प्रॉपर सर्विसेज करवा रहे हैं। ऐसा है, मेरे पास तो कुछ क्लाइंट इतने फिक्स हैं कि वो हर महीने अपनी पूरी सर्विस करवाते हैं, इवन के हाउस वाइफ भी। मतलब पहले ये होता था कि हाउस वाइफ का तो कुछ नहीं चले, जो जॉब करती हैं, जो घर से निकलती हैं, उनका तो था ही था, लेकिन हाउस वाइफ भी कुछ ऐसी हैं मेरे पास जो रूटीन से मेरे पास आके अपनी सर्विसेज करवाती हैं। और उनका ये कहना मैं आपकी बात काट रही हूँ, उनका ये कहना है कि हमारे शौहर, हमारे हस्बैंड ये चाहते हैं कि हम अपने आप को अच्छा रखें। ये बड़े मजे की अब ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, ये आपके कदमों में जिम्मेदारी डालने जा रहा हूँ। आप वो जो कॉस्मेटिक की जो चीज़ें यूज़ करते हैं, आप उस मेकअप में, फैशन में, व्हाटएवर, जी, क्या वो अप्रूव हैं कि वो हमारी स्किन के लिए ठीक हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं कि ये जो आप जिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो अच्छे ब्रांड, मयारी कंपनी की नहीं है तो वो आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए सही नहीं है। अच्छा, मैं इस तरफ आती हूँ। फेशियल आप कोई सा भी करें, मैं अपना नज़रिया बता रही हूँ आपको। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बिल्कुल लो क्वालिटी का फेशियल भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है, डिपेंड करता है वो। बाज़ औक़ात हम बहुत महंगा फेशियल भी किसी पे 2 लोगों पे अप्लाई करते हैं, 2 लोगों पे सेम रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है।
अब आप ये जो कह रहे हैं कॉस्मेटिक है, चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी लोकल प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि अपने सैलून में अच्छी चीज़ रखें, अच्छी चीज़ लगाएं। हम कोशिश अब यही करते हैं। तस्दीक मैं अच्छा नहीं कर ताहिरा, सकती। चले देखें, होता ये है कि जो भी हमारे पास यहाँ आते हैं ना, डिफरेंट मकातिब फ़िक्र के लोग, जी ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि वो कहें कि हमारे यहाँ अच्छी चीज़ें नहीं हैं। सब सही। अच्छे की ही तो बात करते हैं, लेकिन ठीक है, बेहतर से बेहतर के लिए इंसान कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें उन चीज़ों से ज़रा दूर ही इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, चलें जी ये प्रोडक्ट जो है 200 रुपए की है और इसकी ही टक्कर की प्रोडक्ट ये 500 की, तो हमने वो 300 बचा लेना है, ये 500 वाला इसको चेप दो जिसे कहते हैं। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद से खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे हमारे मेहमान थे सर ज़ुबैर अहमद, और आप जी NLP कोच हैं। तो ये पूछेंगे NLP कोच क्या है सर, इनसे भी बहुत सारे सवाल मैंने करने हैं, कुछ बताएं ना ज़ुबैर अपने बारे में। जी थैंक यू वेरी मच। हमारा पहले तो आपका शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। बेसिकली लोगों के जहन में NLP नाम सुन के ना एक अजीब तज़बज़ब में वो आ जाते हैं कि ये जो फील्ड है क्या, या इस पे जो है ना कौन ही लोग काम करते हैं। सर की बात को आगे लेके चलूंगा। सर हैं फिजिकल थेरेपिस्ट जो लोगों की फिजियोलॉजी पे या जो है ना लोगों की जिस्मानी सेहत पे काम करते हैं। हमारी फील्ड में हमें कहा जाता है लिंगुअल थेरेपिस्ट। तो हमारी अब लिंगुअल थेरेपिस्ट क्या है? लिंगुअल थेरेपिस्ट इज बेसिकली यही आपके वाले सवाल कि लोग अपनी जिस्मानी सेहत पे भी ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ स्मोकिंग नहीं छोड़ते। लोग जो है सही से हेल्दी भी रहना चाहते हैं, लेकिन रात को जल्दी सो नहीं और पाते। आप उनकी कोचिंग करते हैं। जी बिल्कुल। तो लिंगुअल थेरेपिस्ट बेसिकली क्या कहती है, NLP क्या कहती है कि यू कैन डू एवरीथिंग बाय प्रैक्टिसिंग विथ इट बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी एक ड्राइविंग फोर्स है। तो अगर आप अपनी ड्राइविंग फोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, आप गाड़ी सही से चलाएंगे तो आप ट्रैक पे रहेंगे। अच्छा ज़ुबैर, एक थेरेपिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि आप जब किसी सफ़र पे निकलते हैं तो आप अपने पास कुछ पैसे रख के निकलते हैं और जो है कुछ अच्छे लोगों के नंबर्स, ताकि आपको सफ़र पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में हम देख रहे होते हैं कि हमने मायूसियाँ, रिग्रेट्स, फेलियर्स, इन सब चीज़ों को साथ रख के चल रहे होते हैं, तो उसमें तो हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो हम ग्रेटिट्यूड वगैरह को क्यों अपने साथ नहीं रखते हैं? जी बेसिकली इसमें भी जो है ना ये भी एक वही सबकॉन्शियस माइंड की जो है ना डीलिंग है, एक इंसान की अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ डीलिंग है। हमारे यहाँ अक्सर कॉर्पोरेशंस में भी, इवन दो मैं जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाता हूँ मुख्तलिफ कॉर्पोरेशंस में, तो वहां पे एक टर्म यूज होता है दैट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। अब वो स्वॉट एनालिसिस क्या है कि स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। अब ये वर्ड वीकनेस खुद अपने डोमेन में जो है ना नेगेटिविटी है, ठीक है। तो बेसिकली जो इंसान अपने साथ रिग्रेट्स लेके चलता है, अपने साथ जो है ना नेगेटिव थॉट्स को लेके चलता है, नेगेटिव इमोशंस को लेके चलता है, तो इसी के रूट कास्ट में हमें जाना है। बेसिकली सर वाली बात के हमें सिम्टम्स पे नहीं देखना, हमें रूट कास्ट पे देखना है, ठीक है, कि उसका रूट कास्ट क्या है। अब रूट कास्ट उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसका कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, उसके जो है ना घर की पेरेंटिंग हो सकती है, ठीक है, उसके घर का जो है ना माहौल हो सकता है, उस वो जिस जो है सोसाइटी में उठ बैठ रहा है वहाँ के लोगों की सोच हो सकती है। अच्छा ज़ुबैर, ये भी अब बहुत सारे लोगों का आगे के कोई एक फेलियर आ जाता है या फिर जिंदगी में ट्रॉमा आ जाता है या इलनेस आ जाती है, तो लोग उसके ऊपर स्टक हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी बस खत्म हो गई है यहाँ पर आकर। कोई डिवोर्स हो जाती है, ठीक है, हमने देखा होगा, कोई इंजरी आ गई, ट्रॉमा आ गया, तो क्यों इंसान अपनी जो है वो उम्मीद छोड़ देता है? लेकिन इस पे एक जबरदस्त शेर किसी शायर ने कहा है कि हंसी आती है उन ख्यालात पे, उन वाक़यात पे, उन जज्बात पे कि ये ना हुआ तो मर जाऊंगा जी, ठीक है।
تو مرتا کوئی نہیں ہے بیسیکلی, وہ آپ کی سوچ ہے, وہی آپ کا پاسٹ ڈراما ہے جس کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہو. آپ کو اس میں سے نکلنے کے لیے نا کچھ انٹرونشنز, کچھ سائنٹیفک انٹرونشنز ہیں جو بیسیکلی ریپیٹڈلی ان لوگوں پہ کی گئی ہیں. اور سوری فار انٹرپٹ, میں پروڈیوسر صاحب نمبر بھی چلائیے گا تاکہ اگر کوئی کال ہمارے پر لینڈ ہوتی ہے تو ہم جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی مستفید ہو سکیں. اور پھر چونکہ آج 26 اکتوبر ہے اور 26 اور 27 اکتوبر کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے منسوب کیا ہے یوم سیاسے. آج ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, ہم ان کی اسٹرگل کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کی آزادی تک آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم ہر پلیٹ فارم پر آپ کی آواز بننے تھے, بنیں گے اور بنتے رہیں گے اللہ نے چاہا, اور اللہ نے چاہا کشمیر بنے گا پاکستان. تو 26 اور 27 تاریخ کو یوم سیاہ کے طور پر ہم منا رہے ہیں بلیک ڈے, اور اس بلیک ڈے پہ ہم جو آپ کی سروسز ہیں اور پھر جو آپ کی قربانیاں ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ حریت رہنماؤں کو بھی ہم آن بورڈ لیں, ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کریں. پروڈیوسر صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ ان کو کال پہ لیں, ہم ان سے بھی بات کریں کہ وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. طاہرہ, چونکہ آپ کا تعلق بیوٹی سیلون سے ہے, آج کی اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہم اکنامکل کرائسس سے گزر رہے ہیں, پھر آج یہ وہی دور ہے کہ جہاں پہ پہلے مرد اتنا فیشن پر اور کاسمیٹک اور میک اپ پر توجہ نہیں, اب وہ بھی کود پڑے ہیں. تو کسٹمرز کا ریشو بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ بہت بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ڈبل ہو چکا ہے یا اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے میں نے آپ کو کیا کہا, ایک خاص موقع کا انتظار ہوتا تھا کہ شادی آئے گی, منگنی آئے گی, ایونٹ آئے گا. اب کچھ بھی نہیں, اب تو وہ ڈیلی روٹین پر بھی سروسز ہوتی ہیں اور تیار ہوتی ہیں لڑکیاں, ہر برائڈل شاور ہے, مطلب کچھ نہ کچھ ہے. تو مطلب ایک دوسرے سے آگے جانے کا بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خوبصورتی میں بھی آگے نکل جائیں, ہر چیز میں ہم آگے چلے جائیں. عورتوں میں بھی ہے اور مردوں میں بھی یہی ہے. بالکل ایسے بہت کمپٹیشن ہو چکا ہے. ایون کہ مرد بھی عورتوں کی طرح ہی, مطلب ایک میں کہہ سکتی ہوں ٹکر ہے کہ کر رہے ہیں, ہر چیز ٹکر پر جا رہی ہے. اچھا, اگر طاہرہ بیوٹیشین نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ میں ڈاکٹر ہوتی یا ہوسٹ ہوتی. ڈاکٹر ہوتی یا ہوسٹ ہوتی؟ اچھا دیکھیں یہ کچھ ہوتا ہے, لیکن ویسے آپ نا میں اپنا شوق بتا چکی ہوں, ڈاکٹر بھی نہیں بنی میں کسی ریزن سے, اور ہوسٹ بھی نہیں بنی کسی ریزن سے. چلیں ہوسٹ بھی نہیں بنی کسی ریزن سے, لیکن ہم بہت ساری چیزوں پر نا کمپرومائز کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی جو آپ کر رہی ہیں تو وہ ایک بہت اچھا پروفیشن ہے اور اس کو آپ اپنے سی ای او کے طور پر لے کر چل رہی ہیں. تو مطلب اپنے ہر پروفیشن میں ایک پرفیکشن دینا اور جو ہے 100% دینا, تو یہ بھی کوئی کوئی کر پاتا ہے, ہر کوئی نہیں کر پاتا. میں ایز اے ہاؤس وائف اپنے بچے, اپنا گھر, اپنا سیلون, ساری چیزیں مینیج کرتی ہوں بہت اچھے طریقے سے. اور یہ میرا مطلب پہلی پیورٹی میرے بچے ہیں, میرا گھر ہے, پھر میرا سیلون ہے. میں ساری چیزیں ایک ساتھ مینیج کرتی ہوں. مجھے 8 سال ہو چکے ہیں اور مجھے اب مزہ آتا ہے. مطلب جو میں یہ کہنا چاہوں گی, جو عورتیں اب چاہتی ہیں سیلون کا کرنا اور وہ سوچتی ہیں کہ بچے ہیں, گھر ہے, میں کیسے کروں, وہ بہت آسانی سے کر سکتی ہیں. کیونکہ آپ کا اپنے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے اوپر سے یہ دیکھیں نا, انسپریشن لیں ان لوگوں سے. یہ آپ ہی کی ہماری کی طرح کے لوگ ہیں اور یہ سوسائٹی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کام کر ہی رہے ہیں. ملک کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا طاہرہ, اس ملک کے لیے بھی تو کچھ شمع جلائیں نا, کوئی ویلیو ایڈ کریں نا کہ بھائی ہم نے اس ملک کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے. ضرور اس بارے میں بھی سوچیں گے. چلیں سوچیں گے, سوچیں ضرور سوچیں. اور ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب بیٹھے, آپ فزیوتھراپسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے پہلے جو ہوا تھا نا, میں اس سے ایک ڈگری آگے بڑھ جاتا ہوں. ہمارے یہاں جو ہاسپٹل میں انتظامی امور ہیں گورنمنٹ کو, ناٹ پرائیویٹ نا, پرائیویٹ والے تو ایز پر ہے نا, آپ سمجھدار ہیں, ایز پر فیس, ہاں ایز پر فیس اور ایز پر فیسیلیٹیشن, تو وہ تو اکارڈنگلی آپ کو ٹریٹ کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا سرکار تو سب کی سرکار ہے. کیا وہاں پہ جو رویہ ہے ڈاکٹرز کا وہ ٹھیک ہے؟ بہت بڑا آپ نے سوال پوچھا ہے, بڑا اہم سوال پوچھا ہے. ہاں یہاں پہ اہم ہی سوال ہوں گے, میں نے اسٹارٹنگ میں بول دیا تھا کہ آپ سے ایسے سوال نہیں ہوں گے. بالکل, اس کا میں ایک ریزن بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کراچی میں دیکھ لیں کہ آپ جنا دیکھ لیں, اس کے علاوہ آپ NICVT دیکھ لیں, اس کے علاوہ SIUT دیکھ لیں, آپ
जो हॉस्पिटल है ना, सबके अपने अपने डोमेन्स हैं. कोई किडनी पे काम कर रहा है, कोई हार्ट पे काम कर रहा है, इसके अलावा कोई जनरल हेल्थ पे काम कर रहा है. अब होता ये है कि अब सिर्फ कराची के अंदर इतने जो बिग हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल से सिंध में शायद कम ही होंगे, सिंध में कम ही होंगे. तो होता ये है कि पूरे सिंध का और हत्ता कि पूरे पाकिस्तान का लोड बेचारे इन हॉस्पिटल्स पे होता है. तो अब होता ये है कि मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान की कैपेसिटी है, अगर वो एक 45 मिनट्स काम कर सकता है लगातार, लेकिन उसके बाद उसका ब्रेन तो फटीग होगा, बॉडी तो फटीग होगी उसकी, तो यकीनन उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन आएगा. नहीं डॉक्टर साहब, फिर हम मेन पावर को भी तो बढ़ा सकते हैं ना. हाँ. नहीं, मैन पावर तो बढ़ेगी, लेकिन एक मिसाल के तौर पे अगर इतना बड़ा रूम है, उसमें सिर्फ 3 डॉक्टर्स आ जाते हैं और वहाँ पे 3 ही डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं, तो पीछे 100 लोग बैठे हुए हैं. तो अब ये भी देखें ना कि मसला उन डॉक्टर्स का नहीं है, मसला ये है कि वहाँ फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ कम है. जिना हॉस्पिटल के लिए आपको याद होगा, आज से कमोबेश 20 दिन पहले एक ख़बर चली थी कि एक साहब ने सर्जरी के लिए जब रिक्वेस्ट की तो उसको 2 साल बाद का टाइम दिया गया कि जी 2 साल बाद हम आपकी सर्जरी करेंगे. उस पेशेंट की शिकायत थी कि मुझे बहुत पेन है, आप मेरी सर्जरी करें और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता. 2 साल बाद मैं सुन के तो मैं सत्ते में चला गया. बिल्कुल. और फिर इंतज़ामिया ने ये कहा कि भाई लोड हमारे पास इतना है. तो ये है सर, अब बताएं अब कहाँ जाएं हम, और इसको इस सिस्टम को और बेहतर अब करने जो के लिए. प्राइवेट फीस अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास तो एक गवर्नमेंट ही बचता है कि वहाँ पर वो जाएं, तो उनके लिए फिर क्या इकदाम? मैं यहाँ पे ये सवाल आप जवाब दीजिएगा, एक वक्फा ले लें, पहले एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं. सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा. सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा. ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं. और डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे, हम उन पे वो कहते हैं ना, वज़न कुछ ज़्यादा हमने उनके कंधों पर रख दिया, तो फिर डॉक्टर साहब सोच रहे थे कि यार अब ये कौन सी गली से मैं से निकल के और ये जवाब भी दे जाऊं, काम भी पूरा हो जाए और कोई तशनगी भी ना रह जाए. ऐसा ही है सर? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है. अच्छा. क्योंकि हम तो इस सिचुएशन से रोज़ ही गुजरते हैं. तो देखें, जो आपका सवाल है ना कि 1.5 साल 2 साल, वो आई थिंक काफ़ी टाइम पहले होता था, लेकिन अभी मैं रिसेंट एक मिसाल देता हूँ. मेरी एक पेशेंट है जो फिजियोथेरेपी कराने के लिए आती थी. अब हुआ ये कि किसी वजह से इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए. फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो प्राइवेट का बोझ नहीं उठा सकती सर्जरी का, और सर्जरी भी उनकी काफ़ी बड़ी थी. तो उन्होंने फिर इंडस हॉस्पिटल है हमारे कराची में, कोरंगी में, वहाँ उन्होंने उसका इंतखाब किया और फिर वहाँ वो गई हॉस्पिटल में. आप यकीन करें कि मेरा खुद ये था कि भाई इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो आपको एटलीस्ट लगेंगे वहाँ पे, लेकिन विद इन 2 डेज़ उनकी सर्जरी भी हो गई, 3 डेज़ में वो घर भी आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह जो सही है. तो अब ऐसा नहीं है, अब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट AI पे चली गई हैं, फास्ट हो गई है. फास्ट हो गई है. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब थोड़ा हम जो है वो इलनेस की तरफ आएंगे. आजकल फ्रीजिंग की बात बहुत आ रही है, सुनने में आ रही है, ख़वातीन है उनके शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं, और जो है मर्द, अब उनमें भी ये चीज़ें देखने में आ रही है. इसकी थोड़ी वजूहात बताएं और इसकी थेरेपी बताइएगा. बिल्कुल. देखिए, हमारे पास काफ़ी केसेस आ रहे हैं. इसमें आप मेल का रेशो भी देख लें. पहले ये होता था कि भाई ख़ास एज में ख़ास बीमारियां होती थी. बिल्कुल. अब वो नहीं है, अब किसी को कुछ भी हो सकता है. तो बिलफर्ट हमारे पास यंग 35, पहले ये होता था कि 55, 60, 65 इस एज के लोग आते थे हमारे पास कि भाई हमारा हाथ फ्रीज हो गया, नी से चला नहीं आ रहा, नी जॉइंट लॉक हो गया, बैक लॉक हो गई है, हम डेली मर्रा के काम नहीं कर रहे, रोज़मर्रा के काम हमारे ईजी नहीं हो रहे. लेकिन अब ये थोड़ा सा एज पीछे आ गई है. अच्छा, इसकी रीज़न जो आपने पूछा, रीज़न बहुत सी रीज़न हो सकती हैं. इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ एक तो इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. लोग जो है ना वो समझते हैं कि हम अगर खातून हैं, हम अगर कोई फीमेल है घर के काम कर रही हैं तो भाई मेरी एक्सरसाइज हो रही है, मैं हाथ पाँव चला रही हूँ तो मेरी एक्सरसाइज हो रही है. और इसी तरह कोई ऑफिस जा रहा है, भाई मैं बैठा हुआ हूँ,
ऑफिस से बैठ के खाने डिनर कर लिया, लंच कर लिया, तो भाई मेरी एक्टिविटी हो गई, सीढ़ियाँ चढ़ के मैं जाता हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना। तो ऐसा कुछ नहीं है। WHO की रिकमेंडेशन है कि आपने पर मंथ मतलब पर वीक इसको कह रहे हैं कि पर वीक आपने समझ लेंगे 300 मिनट आपने एक्सरसाइज को देना है पर वीक। तो यकीन अगर आप इसको पर डे पे लगा लें तो एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स आपने जो है ना वो एक्सरसाइज रोज करनी है। अच्छा, वॉक के हवाले से कहा जाता है कि आप वॉक कर ले तो फिर भी मतलब ठीक है, आपने अगर एक्सरसाइज नहीं करे तो वॉक जो है वो ठीक है, इक्वल है। और अगर कहा जाता है वॉक का जो है अल्टरनेटिव, अगर आप घर पे स्क्वैट्स भी लगा लें तो वो भी ठीक है, तो इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, वॉक तो अहम है ही, वॉक तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखें स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पर मैं स्पोर्ट्स को देखता हूँ तो हमारे पास अक्सर जो आते हैं इंजरी के साथ, वो क्या करते हैं कि उनको प्रॉपर पता ही नहीं है कि भाई हमने वार्म अप किस तरह करना है, कूल डाउन किस तरह करना है। आजकल फुटसॉल का बहुत चल रहा है, हर कोई फुटसॉल खेल रहा है। अब फुटसॉल खेलने तो चले जाते हैं वो लोग, लेकिन होता ये है कि ना वो स्ट्रेचिंग करते हैं, ना वो वार्म अप करते हैं, एकदम गेम में जाते हैं, फिर इंजर होकर वापस आ जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो है ना वो थोड़ा सा जुबैर भाई के पास आते हैं। जुबैर भाई, मेंटल हेल्थ के हवाले कितना, एक तो मेंटल हेल्थ, दूसरा ये कि क्योंकि आप एक कोच हैं, कितने लोगों की काउंसलिंग कर चुके होंगे? सर मैंने शुरुआत की थी, बेसिकली मेरा ताल्लुक इंटीरियर सिंध के एक छोटे से गांव से है। वहाँ पे इस डोमेन में आने का, पब्लिक स्पीकिंग में आने का, ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग में आने का इतना कोई रुझान नहीं था। इवन तो आज भी मैं समझता हूँ हार्डली हम 10 से 15 लोग होंगे जो जिन्होंने NLP किया होगा। पूरे खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस चीज में आने से पहले ना हमें खुद पहले मुझे खुद जो है ना बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ा था। मतलब वो कैसे गुजरना पड़ा था, हमारी यंग जनरेशन में क्या है, इमोशनली ट्रिगर्ड है। आप बच्चों को, स्पेशली एडोलसेंस को, क्योंकि हमने इस पे एक पूरा प्रोजेक्ट किया है यूनिसेफ के साथ, जो बच्चों की जो है ना एडोलसेंस की मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे थे, और साथ साथ उनके केयर गिवर्स की। तो उनके साथ जो है ना इमोशनल ट्रिगर्स जो हैं, उनकी जो नेगेटिव पेरेंटिंग तो नहीं कहूंगा, बल्कि उन्होंने भी वही मतलब वही तसलसल लेके चल रहे हैं जो हमारे पास पिछले वीकेंड से आ रहा है। तो वो जो उन जो है उस दौर से जो गुजरे थे, तो इस चीज में आने के बाद तकरीबन मैंने काम शुरू किया था जब मैं बहुत ही टीनेज में था। पहले लोकल NGOs के साथ वॉलंटियरिंग शुरू की थी, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट, उसके बाद NGOs के साथ ट्रेनिंग। तो इस वक्त तक अराउंड मेरा कोई हेड काउंट, जो ट्रेनिंग काउंट अगर मैं बात करूं तो वो अराउंड कोई मतलब अच्छा, आप लोगों का जो आपने इंटीरियर सिंध के हवाले से बात की है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच भी नहीं है वहाँ पर। आप लोगों की शादियां भी जो है वो बचपन में तय कर दी जाती हैं। नहीं, ये तो, अच्छा, इसमें भी ना एक डॉगमा है। बेसिकली अब डॉगमा क्या है, डॉगमा ये है कि आपका 6 किसी का 9 हो सकता है। ठीक है, आप खड़े हो एक पोजीशन पे, मैं आपको सिंपल अभी यहीं पे थेरेपी करते हैं। आप खड़े हो यहाँ सिंपल पोजीशन पे, ठीक है, आप खड़े हो यहाँ पे, और यहाँ पे एक डिजिट लिखा हुआ है 6, ठीक है, आप खड़े हो यहाँ पे। अब जब आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको नजर आ रहा है 6। अच्छा, एक बंदा है जो यहाँ पे खड़ा है, उसको क्या नजर आ रहा है? 9 नजर आएगा। 9 नजर आ रहा है, ठीक है। गलत कौन है? कोई भी गलत नहीं है, दोनों कोई भी गलत नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम लोगों के बारे में, अगेन मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हम आपको देख के बनाते हैं, जो मतलब मीडिया को देख के बनाते हैं। सही, ठीक है। हम इन ये जो मतलब इस तरह की मतलब सच्चाई नहीं होती जिसमें हम कोशिश करें कि उनको ज़्यादा हाईलाइट ना करें, उन इश्यूज़ को हम ज़्यादा डिस्कस भी ना करें कि जो जिनका, जिस तरह ज़ुबैर भाई ने कहा, वो है ही नहीं। ठीक है, ताहिरा, मैसेज क्या देंगी उन हाउसवाइफ को, क्योंकि आप जैसे आपने कहा ना कि मैं अपना पूरा घर लीड कर रही हूँ, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, आपको किसी ने रोका था कि ना जाए इस फील्ड में? बिल्कुल रोका था। अच्छा। मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। मैंने प्रॉपर दोबारा से ट्रेनिंग ली और सीखा, फिर से मैंने अपना सैलून ओपन किया। बहुत सारे हर्डल्स आए, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत आसान था कि सारी चीज़ें प्लेट में रखी हुई हैं और मैंने, नहीं, बिल्कुल बहुत सारे। और ताहिरा, अब आप देखती होंगी कि जब आपने कर लिया और आप एक अच्छी जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई हैं, तो अब वो सब आपको पूछते होंगे। जी, अब आपके पीछे आते वो फोन आता है कि आप हमारी सर्विस कब करेंगी, हमें डिस्काउंट कितना देंगे, हमारी शादी, मतलब ये जो रिलेटिव्स हैं, चाचा, मामा, ताया, सारे मुझसे ही कहते हैं कि कर दें, मेकअप कर दें, और हमारी नाम कमा लिया और सब कुछ हो गया। ये वही लोग हैं जो बातें करते थे। अब फिर आपको कल जब आप बताइएगा कि कल मैं टीवी पर भी हूँ और मैं अब टीवी स्टार भी बनने जा रही हूँ, तो फिर और शायद उनमें ना, है ना, चले, है ना। अच्छा, कि मैसेज क्या देंगी उन ख़वातीन को कि जो अभी भी घबराई हुई हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हैं,
चाहे इन लॉज की तरफ है, हस्बैंड, दीगर हमारे रिलेटिव रिश्ते होते हैं, वो कहते हैं यूँ नहीं करो, ऐसे नहीं करो. अच्छा, कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है कि हम गलत होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा होता. मेरा मैसेज ये है, जो भी ख़वातीन है जो ये सैलून के हवाले से मैं बात करूँगी, करना चाहती हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं हो पा रही हैं. पहली बात तो ये पार्लर जो हम सैलून ये जो हम चला रहे हैं, ये हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं. लोगों को ये लगता होगा कि ये सैलून से ये मेरा फ़ायदा है. मेरा फ़ायदा नहीं है, पूरी फैमिली का फ़ायदा है. अगर मैं कमा रही हूँ तो इट्स मीन कि मैं और मेरा शौहर मिल के घर चला रहे हैं. शायद मैं उससे ज़्यादा कमा रही हूँ, तो एक सपोर्ट होता है. मैं उनके लिए भी, उनके शौहरों के लिए भी ये बात कहूँगी कि आप अपनी बीवियाँ जो भी टैलेंट रखती हैं, सीखना चाहती हैं, उनको ज़रूर जो है ना उनको सपोर्ट करें और ये काम करवाएं. घर की हदूद में रह के ये काम हो रहा है. ऐसा नहीं है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं. बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने घर के अंदर सैलून बनाया हुआ है मैंने, और काफ़ी औरतें ऐसे हैं जो घर में ही करती हैं. तो आप उनको इजाज़त दें, उनको एक चांस दें. ये ना सोचे कि सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी. जिन्होंने जो सोचना है वो वैसे ही सोचते हैं. बिल्कुल, जिन्होंने जो सोचना है वो सोचेंगे. आपकी फैमिली आगे. हमने दीगर मेहमानों से भी आपको मिलवाना है. मैं ज़रा मैसेज ज़ुबैर भाई से भी ले लूँ, डॉक्टर साहब से. पहले ज़रा डॉक्टर साहब आप क्या मैसेज देंगे? आपसे मैं 2 मैसेज लूँगा. एक मैसेज तो आप ये दें कि अच्छा, ज़ुबैर साहब से पहले मैसेज लेना. अच्छा चलें, प्रोड्यूसर साहब ने कहा पहले ज़ुबैर भाई से लें. ज़ुबैर भाई पहले आप मैसेज दें. आप मैसेज ये दें कि आपने कहा कि पहले इतना रुझान नहीं था, लोगों को पता नहीं था. अब आप लोगों को ये भी बताएं कि जब मैं अपनी इस फील्ड में पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ ले चुका हूँ तो अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ और मुझे इन लोगों ने रिस्पेक्ट कितनी दी है. जी, बेसिकली यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप अपने आप पे काम करते हो ना, देखें इमोशंस जो है ना एक बबल की तरह है. वो बबल जैसे ही फटता है ना, तो उसके बाद जो नेक्स्ट नेगेटिव इमोशन आपको हिट करता है, दैट इज सैडनेस एंड रिग्रेट, कि मैंने ऐसा क्यों किया. एक आपको एंगर आ गया, उसके बाद जो सडनली आपको जो दूसरा हिट करता है वो सैडनेस एंड रिग्रेट होता है. तो उस सैडनेस एंड रिग्रेट से बचने के लिए अगर आप पहले वाले को ही मैनेज कर लें, मैंने ये नहीं कहा कि खत्म कर लें, इमोशंस खत्म नहीं होते इंसान में. अगर आप उसको मैनेज कर लें तो आप बहुत सारी चीज़ों पे काबू पा सकते हैं. और ये जब आप थेरेपीज खुद पे करते हो ना, तो आप एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारते हो. आपको पता होता है कि अगले का, मैं जिस 9 पे बात कर रहा हूँ ना, वो अगले का 6 हो सकता है, तो आप उसके साथ एम्पैथाइज कर जाते हो. क्या बेहतरीन डॉक्टर साहब. मैं आपसे मैसेज लूँगा, आपसे 2 मैसेज लूँगा. एक तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते, वो प्रिटेंड करते हैं कि हम हैं, जाली जिसे कहें, है ना, उनको क्या कहेंगे. और दूसरा ये कि आप लोगों में ना डॉक्टर जब लग जाता है ना, तो लोग आपको मसीहा समझते हैं, और कुछ मसीहा नहीं होते. वो जस्ट इसको अपना एक कहते हैं मेरा तो ये प्रोफेशन है, काम धंधा है, मेरा तो पैसे कमाने का है भाई, ये सीन है. क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी जो रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही जवाब दूंगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सी बॉडीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं. जैसे हमारी खुद पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन इस पर वर्क कर रही है. इसी तरह बहुत सी बॉडीज़ हैं जो इस पर काम करती हैं, और अब वो पकड़े भी जा रहे हैं और ये काम बहुत कम भी हो गया है. और दूसरा एक चीज़ है कि जब से ये AI और सोशल मीडिया ये सब चीज़ें आम हुई हैं, तो लोगों को खुद अवेयर हो गए हैं, खुद अवेयरनेस आ गई है. उनको पता है कि हमें कहाँ जाना है. वो सर्च करके बाकायदा आते हैं कि भाई डॉक्टर फैज़ान के पास जाना है, ये स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये आम फिजिकल थेरेपिस्ट मेरा डील नहीं करेगा. तो अब आवाम में ये अवेयरनेस आ गई है, ख़ासतौर पर ये आप मीडिया की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पता है लोगों को हमें किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना. एक आखिरी मैसेज मैं ये देना चाहूँगा जितने भी हमारे पाकिस्तानी आवाम हैं सबके लिए, कि देखिए अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करें. आप बेशक 10 मिनट करें, 15 मिनट एक्सरसाइज करें, लेकिन अपनी लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा रूटीन में कितने भी थके हुए हो, कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन आपने 10 से 15 मिनट रोज़ हल्की फुल्की वर्जिश, जितने भी हमारे बिग मसल्स हैं, हाथ के ले लें, पाँव के ले लें, बैक के ले लें, हर सबको आपने ट्रेन करना है. 10 से 15 मिनट दें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे. चलें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है. ब्रेक के बाद हम आपको दीगर शख्सियात से भी मिलवाते हैं. एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद. सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा. सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन,
खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और जिन मेहमानों के साथ आपको हमने मिलवाया, अब सर सेट पर नए लोग आ गए हैं और इनसे हम आपको मिलवाते हैं, इनसे पूछते हैं इन्होंने मुल्क मिल्लत के लिए क्या किया है, ये क्या क्या एक्सपर्टीज़ रखते हैं। पहले हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, मुतादिद अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं। सैयद असलम परवेज़ साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। सर खुशामदीद। असलम साहब आपने टाइम दिया। और एक और सर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट मंजूर हुसैन समार। सर खुशामदीद कहेंगे आपको भी शो में। और एक और लेडी हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप CEO हैं एम्पल एज की, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुतादिद डेजिग्नेशन आप रखती हैं, आप अच्छी एजुकेशनिस्ट हैं, आप अच्छी मैनेजमेंट को भी रन कर सकती हैं, और बिल्कुल एक क्या लेक्चरर भी हैं, लेक्चरर भी साइंसेस की, और फिर जो है बहुत सारे सवाल हम आपसे भी करेंगे। और फिर जब वुमेन, इससे पहले भी एक खातून बैठी थी, उन्होंने बताया कि मैं अपनी फैमिली को कैसे लीड कर रही हूँ, और न सिर्फ हर शोबे में इस वक्त ख़वातीन आई हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और हम लोग हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो सिर्फ बात ना करें, अमली जामा उसको पहना है। वन एंड ओनली सर मुमल मिर्ज़ा को हम खुशामदीद कहेंगे। मोस्ट वेलकम, आपने टाइम दिया। आगाज़ भी नहीं से करते थे, वो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। तो कैसा रहा ओवरऑल जर्नी? नाउ यू आर अ सक्सेसफुल लेडी, आप अपनी वो कहते हैं ना फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर में जगमगा रही हैं, कैसा फील करती है? इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, ऐसा ही है? बिल्कुल। बताएं ना कुछ। अच्छा, मैंने एक्चुअली अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी, तो आई वाज वेरी यंग, और जब मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया तो आई वाज जस्ट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और उसके बाद में थ्रू एंड थ्रू मैं अपने जो है वो स्टेप्स लेती रही। और अब भी मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन का इख्तिताम कभी भी नहीं होता, किसी भी एज और पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होता। एजुकेशन इज द की टू द डोर ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, है ना? अच्छा, आप लेक्चरर भी हैं? बिल्कुल, मैं लेक्चरर भी हूँ, और मैं अपना PhD कर रही हूँ, और मैं स्टिल जो है वो अपनी पढ़ाई को जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस समझती हूँ कि ये जो है वो थ्रू आउट, इसके लिए कोई एज या लिमिटेशंस नहीं। अच्छा मोमल, आप बुक्स वगैरह भी लिखती हैं। अभी जो मेरे हाथ में आपकी एक बुक है, द फ्यूचर ऑफ लर्निंग जी, तो इसके बारे में आप बताइएगा। जी, तो मैंने ये एक्चुअली, आपको जैसे सबको पता है कि AI का दौर है, हाँ। और AI जो है ना वो सिर्फ अब एक मामूली सा टूल नहीं रहा है, ठीक है, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। हर किसी की लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन AI की होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली अगर हम ये कहें कि कोई शख्स इस AI का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, इनफैक्ट जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप उसमें थंब इम्प्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ों से आप AI ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, और AI जो है वो आपको बेहतर तरीके से जो है वो अच्छे दौर में लेके जा रही है। तो इससे घबराएं ना, और इससे बिल्कुल ये ना समझें कि इससे आपकी पोजीशंस इनसिक्योर हैं। इट्स द स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। लेकिन हाँ मोमल, क्या नाम है, AI के तो नुकसानात भी हैं, हम ड्रॉबैक्स भी देखने में आते हैं, तो उसके हवाले से भी आपने इस बुक में कुछ मेंशन किया है? जी, मैंने बिल्कुल इस बुक में मेंशन किया है। देखिए, नुकसानात और फ़ायदे हर जगह हमेशा से हर चीज़ में रहे हैं, और इसका बेहतर इस्तेमाल करना जो है वो हमारे हाथ में है। ठीक है, मैं इसमें ये कहूँगी कि इसमें हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे बच्चे जो हैं वो iPads का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करने लगे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल माँ बाप भी काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, और बच्चे जो हैं उनको ईजी एक्सेस लगता है फ़ोन में अपना टाइम स्पेंड करना, लर्निंग करना, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके अंदर आपके पास कंट्रोल पैनल्स आ जाते हैं AI के थ्रू, ठीक है, जिसके अंदर आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, आप डिफरेंट ऐप के थ्रू वो लिमिटेड कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन कि आप क्या दिखाना चाहते हैं बच्चे को। ज़बरदस्त, ये बहुत सारे सवालात हम आपसे करेंगे, चूँकि ये जो AI का मतलब वो रुझान कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बहुत सारे लोग अब इस तरफ गामज़न हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में एक AI साजिद बैठ का प्रोग्राम कर रहा होगा, और साजिद बेचारा बेरोज़गार हो जाएगा। और इस पे भी बड़ी रिजर्वेशन है लोगों में कि यार अगर इतना सब कुछ आ जाएगा, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी, तो हम कहाँ जाएंगे? बात करते हैं इस पर। मुमल हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मंजूर साहब, बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट,
جب ہمارے ساتھ وکلا حضرات آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر ایک عام آدمی وکیل سے کیوں گھبراتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, آپ نے مدعو کیا, اچھا لگا. اور بات یہ ہے کہ وکلا سے گھبرانا نہیں چاہیے. وکلا تو ایک پروٹیکشن کے لیے, عام آدمی کے مطلب لیے, ایک ڈاکٹر اور ایک وکیل کو پہلے تو سب سچ بتانا چاہیے. جی جی بالکل, آف کورس. بات یہ ہے کہ وکیل تو جو آیا ہے یہ تو ایک پروٹیکشن کے لیے, جس کی نہ سنوائی ہو, جہاں جس کو کہیں کوئی مسئلہ کوئی درپیش ہو. ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ہمارے جو آفیسر ہیں وہ جب سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک اپنے آپ کو ہمارے عوام سے علیحدہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ان کو سنوائی نہیں, وہ جائیں گے ان کے دروازوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. میں آسان کر دیتا ہوں نا, میں کرنٹ افیئر کا ٹی وی کروں, میں آسان, وہ اپنے آپ کی ذات میں وہ فرعون سمجھنے لگتے ہیں. ہم یہ نہیں کہنا چاہ سر, رہے, میں کہہ رہا ہوں نا سر, آپ کہیں. تو اس وجہ سے ان کے لیے ایک ہی دروازہ بچتا ہے, وہ ہے عدلیہ کا. اچھا جی, تو عدلیہ میں جو وکلا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کی جو سنوائی ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے, عام ایک آدمی کو اس کا جو رائٹ ہے وہ آسان مل سکے اور شارٹ ٹائم میں مل سکے. مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اپنے ابھی جو یہ 26 امینڈمنٹ آئی ہے اس میں پہلے انڈیپینڈنٹ ہوتی تھی جوڈیشری, تو اب اپنے لیے جو انڈیویجول ہیں, پارٹی ہینڈل کرنے والے ہیں, وہ اپنے آپ کو ان سے مبارہ کرنے کے لیے 26 امینڈمنٹ کی بات کر ہی لی ہے. جی جی, تو پھر آپ ہی کے جو لائرز ہیں, جو آپ ہی کی صفوں کے لوگ ہیں, انہوں نے اس کی حمایت کی. اس وقت بھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ دے آر کمپرومائز. نہیں, اس میں بھی وکلا میں بھی دو طرح کے لوگ بستے ہیں. دو طرح کے, صحیح, ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ نا ایسے ہی اچھے برے ہیں لوگ. ہاں, اچھے برے ہر جگہ ہیں. جو تو سوچتے ہیں کہ اس ملک کا اچھا کرنا ہے تو وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, کیونکہ اپنی وش کے لیے اگر آپ ادارے کو ختم کر دو گے نا تو ملک خراب ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. ادارے ملک کو چلاتے ہیں. اگر ادارے جب اپنے ماتحت کر لو گے, آپ کی مرضی کے حساب سے چلیں گے تو وہ ملک ٹوٹ جائے گا. جان کی امان پاؤں. ویسے چونکہ ایک سیٹلائٹ ٹی وی چینل پر ہمیں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے نا, ہمیں لمٹس پتہ ہوتی ہیں, ہمیں کہاں تک جانا ہے. ایک موصوف تھے, ہز نیم ثاقب نثار. آپ کی نظر میں اچھے جج تھے؟ نہیں جی, میں نہیں کہوں گا. اس کے علاوہ اس کے بعد بھی جو ابھی ہمارا ریسنٹلی قاضی صاحب گئے, نام تو قاضی تھا پر زیادہ جو ہے وہ عدلیہ کے لیے اتنا وسٹ کر گیا ہے, یہ 26 امینڈمنٹ کے لیے کمپرومائز ہو گیا. حالانکہ جب پہلے تھا تو اس پہ ہمیں کوئی امیدیں تھی کہ یہ چیز بنے گا اس ملک. میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ تو لوگوں کے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وکلا کو دیکھا گیا ہے وہ بیچارے بھی اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ناانصافی ہوتی ہے, اور آپ لوگوں کو دیکھا پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں, اس میں بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ جی ہم کمپرومائز جب ہو جاتے ہیں, ہماری یونٹی ٹوٹے گی تو ہمارے لیے بھی یہ ایشو بنے گی. پہلے نہیں تو مشرف کا ٹائم تو آپ کو یاد ہوگا کہ چینل نہیں چلنے دے رہے تھے, وکلا تحریک کامیاب ہوئی, جس کے تو بڑے نام تھے نا سر, اعتزاز احسن صاحب لیڈ کر رہے تھے, علی احمد قدس صاحب تھے یہاں سے. جی یہاں پہ نعیم قریشی صاحب تھے کراچی سے, اس طرح وکلا جلائے گئے ہمارے جو نہیں کمپرومائز ہو رہے تھے, تو ان کو اندر آفس میں بیٹھے تھے, تالے لگا کے کیمیکل ڈال کے جلا دیا گیا تھا. پر اس کے بعد بھی وکلا کمپرومائز نہیں ہوئے تھے. مگر بدقسمتی سے اب کیوں کمپرومائز ہیں یہ بھی تو بتاتے جائیں منظور صاحب. جی بس دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی عہدوں کی لالچ دے دی گئی, ٹھیک ہے, کسی کو کوئی زمینیں دے دی گئی, تو وہ لالچ کی وجہ سے ہم جو ہیں کمپرومائز ہو گئے. مگر وہ کچھ لوگ ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں. آپ لوگوں کے رائٹس پر ہوتے ہیں, ورکنگ ہوتی ہے, آپ لوگوں کو رائٹس ملتے ہیں اپنے؟ جی رائٹ اس ملک میں نا آرام سے نہیں ملتے. چلیں آگے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. ویسے جو ہماری ریاست کے لوگ چلانے والے ہیں, جن کے ہاتھ میں یہ کہیں کہ کمان ہے, جو اس ریاست کے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, ان کو شاید پتہ ہے کہ کون کب کتنے میں برائے فروخت ہو سکتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے
हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बाद खुश आमदीद। और चूँकि 26 और 27 अक्टूबर यूम स्याह मनाया जा रहा है जी, और कश्मीरी भाइयों के हुकूक पर जो बेशरम मोदी सरकार ने कदगन लगाई, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम उनकी जो जद्दोजहद है, जो उनकी स्ट्रगल है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं उनकी आज़ादी तक। और हम जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएंगे। असलम साहब, कश्मीरी भाई जब जब आवाज़ लगाते हैं हम लब्बैक करके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। आज भी खड़े हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज संडे मॉर्निंग है और माशाल्लाह इतना खूबसूरत सा पैनल मेरे साथ बैठा हुआ है। हालांकि मैं नाश्ता करके नहीं आया हूँ, लेकिन एहसास भी नहीं हो रहा कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। करते हैं प्रोग्राम के बाद करते हैं नाश्ता। तो मुझे नाश्ते की फीलिंग नहीं हो रही। बहरहाल एक खूबसूरत प्रोग्राम की इब्तिदा। साजिद भाई, बात इतनी सी है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस स्टेज पे आके खड़ा हुआ है ना, जैसे मैं आप भी कल रात को मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, हम रहते भी हैं साथ साथ, तो ये वो वक्त है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए हर फॉर्म पे अपनी बात मनवा सकता है। हमारा अब वो मुकाम आ चुका है, वो इस स्टेज पे हम खड़े हैं। अभी मैं कश्मीर के हवाले से बातें कर रहा हूँ इसलिए कि देखें, अभी हमने जैसे सऊदी अरब के साथ एक बहुत जामे किस्म का हमने एक मुआहिदा किया और दुनिया को रश्क कर रही है इस पाकिस्तान के इस लेवल पे आने के बाद। तो मेरी यही गुजारिश है अपनी वक्त हुकूमत वक्त से, हमारी स्टेट से, कि अब वो वक्त है कि अपनी पूरे रिसोर्सेज के साथ दुनिया को मजबूर कर दें कि वो कश्मीर का जो हक़ है, उनके जो राइट्स हैं, वो उनको दे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब उस पोजीशन में है कि वो कश्मीर के लिए एक बहुत जामे तरीके से खूबसूरत आवाज़ उठा सकता है। और यही वक्त है। कौमों को कभी कभी वक्त मिला करते हैं कि किसी मजलूम कौम का साथ देने के लिए कभी कभी कोई वक्त खुदा ऐसे ज़राए पैदा कर देता है, ऐसे सिलसिले पैदा कर देता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इतना हैवी होना चाहिए कश्मीर के मामले में। ज़रा आपका पड़ोसी मुल्क है और एक ज़माने से आप जो कश्मीर के हक़ में जो भी जुल्म सितम उनके साथ हो रहा है, और दुनिया से वो कोई पोशीदा नहीं है। दुनिया देख रही है कि जो मोदी सरकार जो है, जो आपके पड़ोस में बैठा है आपका, उसको मैं समझ में नहीं आता मैं कौन से लिहाज से मैं उसको दुश्मन कहूँ। अभी भी उसने पाकिस्तान पे एक दूसरे छोटे से मुल्क के साथ मिलके एक वार करने की कोशिश की, और पहले भी अब मुंह की खाई, और दूसरे जो वार मुल्क है उसके साथ मिला के भी उसने मुंह की खाई। तो इंशाल्लाह असलम साहब, हमें एक पाक हुर्रियत रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया, अब्दुल हमीद लोन साहब ने, आज़ाद कश्मीर से। सर खुश आमदीद कहेंगे अब्दुल हमीद लोन साहब, आप सुन सकते हैं? मेहरबानी। ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर साहब। हमीद साहब, 26 और 27 अक्टूबर योम स्याह के हवाले से आप क्या कहेंगे? 27 जी जी, कश्मीर की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है। आज ही के दिन 1947 में भारत ने कश्मीर पे गैर कानूनी कब्जा किया। ठीक है। श्रीनगर में अपनी फौजें उतारी और जम्मू कश्मीर के अवाम का हक खुद इरादत तलब किया। इस गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ अगरचे कश्मीरी उस वक्त उठ खड़े हुए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा गए और उन्होंने एक तहरीरी एग्रीमेंट किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को पेल्टिसाइड का हक दिया जाएगा। ठीक है। और मैं सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की तामील करूंगा, या जो सिक्योरिटी कौंसिल का जो चार्टर है उस पर मैं अमल दरामद करूंगा। ताम आज 78 साल हो गए हिंदुस्तान ने वादा खिलाफी की, और जहां अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी भी की गई है। 5 अगस्त को फिर जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी पे हमला हुआ, और जम्मू कश्मीर में इस वक्त खू का आलम है, ला कानूनियत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है,
और इस रीजन में जहाँ कज़िया कश्मीर की वजह से 4 जंगें हुई, ठीक है, और 2 करोड़ से ज्यादा अवाम इस वक्त मुतासर हो सकते हैं अगर ये कज़िया हल नहीं हुआ, क्योंकि एटमी ममालिक आमने सामने हैं। तो वही हिंदुस्तान का हमेशा से ही गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा, ठीक है, उसके गैर जमहूरी तर्ज अमल ने इस रीजन को तबाही के दाहने पे पहुंचा दिया है। हिंदुस्तान में आज भी करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं। तो वही हिंदुस्तान को जंगी जुनून जो है वो सर चढ़ कर वो बोल रहा है कि मैं ताकत का इस्तेमाल करूं। अच्छा, अगर कश्मीर पे हमले की बात कर रहा अच्छा, है। सॉरी कथा कलामी के लिए मादरत। अब्दुल हमीद लोन साहब, यासीन मलिक और जो हुर्रियत रहनुमाओं की तहरीक थी, बहुत सारे जेलों में आज भी हैं, उनके जो मजबूत इरादे हैं, उनकी जो तहरीक है, उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप अगर रोशनी डालें। देखिए, जम्मू कश्मीर के अवाम, चाहे लीडरशिप हो या आम शहरी, अपने हक इरादत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब इस जद्दोजहद में हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पे लोगों को नजरबंद किया, उन पे काले कवानीन नाफिज किए, ठीक है, और उनकी आज़ादी को सलब किया। ठीक है, तो वहीं जो जज्बे हुर्रियत है कश्मीरियों का, वो खत्म नहीं हुआ। ओके। और अगर आप आज की डेट में भी देखें, हिंदुस्तान की जो फोर्सेस के एहलकार हैं वो खुदकुशियां कर रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं। हालांकि उन्हें तमाम फैसिलिटीज मैसर है, वो घर भी जाते हैं, टेलीफोन पे भी बात करते हैं। उसके बावजूद अगर आप कश्मीरी वो निहत्ता जो इनोसेंट इस वक्त जेल के अंदर है, आपने सुना कभी कि उसने दीवार के साथ सर टकराया या खुदकुशी की? बेशक हो ही नहीं सकता। उसके जज्बे जो हैं वो इंतहाई बुलंद हैं, वो अपनी आजादी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इसी तरह से आम लोगों का जो जज्बा है, और ये चौथी जनरेशन हमारा जो है ना वो इस वक्त फेस कर रही है। तो लिहाजा हिंदुस्तान हमारी आजादी को बज़ोर ताकत, बज़ोर बंदूक खत्म नहीं कर सकता है, उसे नोश्ता दीवार पर लेना चाहिए। इस कज़िये के लिए वो जब तक मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान तरक्की करेगा या लोगों की भूख मिटाएगा। उसे चाहिए कि वो अपने आप को नाम नहाद जमहूरी मुल्क कहला रहा है, तो हमारे जो जमहूरी हुकूक है उनको बहाल करे, हमें आज़ादी दे, हमें वो हक कुदरातियत दे, हमें वो साइड का हक दे जिसका उसने। अब जाते जाते मेरा आखिरी आपसे सवाल है, वो जो प्रचार करता है नरेंद्र मोदी ह्यूमैनिटी का, वो बेशरम आदमी को यहाँ पे वो इंसानियत नजर नहीं आती? देखिए, ये जो भी कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, वो सारे इंसानियत सोज मजालिम है। ठीक है, इनमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, इनमें कोई इंसानियत नहीं है। इन्होंने मजहबी मुनाफरत को फरोग दिया है। ये लोगों को मारना जो है ना वो अपना फर्ज समझते हैं, और जहाँ ये खुले आम तकारीर भी करते हैं, जहाँ ये पार्लियामेंट के फ्लोर से भी इश्तिहार अंगेजी को हवा दे रहे हैं। हर दीवार के जलसे में देखें, इनकी जो लीडरशिप है, या खुद नरेंद्र मोदी, इसके हाथ जो है ना वो गुजरात में खून से रंगे हुए हैं। इसका माजी बड़ा जो है ना वो खौफनाक है। नहीं, तो वहां पे देखे ना, वो जो खालिस्तान तहरीक है, वहां पे सिख सरापा एहतजाज हैं, वो उनको तो राइट्स दे नहीं पाए। पूरी हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें, सिख हो, जो भी अकलियत है, उसके साथ साथ दलित हैं, सबके हुकूक सलब हैं। जब से मोदी बरसर इक़्तिदार आया है, वहां पर लाकानूनियत है, वहां पर जंगल का राज है। वो बज़ोर ताकत जो है ना अपने मुखालफिन को दबा रहा है। तो सिखों की तारीख में भी उनका जेनोसाइड हुआ। इसी तरह से पंजाब के अंदर 1984 में क्या हुआ, आज भी जहाँ सिखों का कत्लेआम हो रहा है, उनके हुकूक सलब है, दुनिया में दहशतगर्दी के जरिए उनको मारा जाता है। तो ये एक दहशतगर्द रियासत है, इसके अज़ाइम इंतहाई खतरनाक है। दुनिया इस रियासत को रोके, इसके शर से अब इसका कोई हमसाया महफूज नहीं है। तो लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबकी जिंदगियों को खतरा है, और हिंदुत्व एजेंडे को फरोग दिया जा रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब्दुल हमीद लोन साहब हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और वो यूम स्याह के हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं।
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा वक्फे के बाद सर खुश आमदीद। और मुमकिन ही नहीं है कि हम जब आप पर काली ज़रब लगे और पाकिस्तानी आपके साथ खड़े ना हो। तो हम कश्मीरी भाइयों, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं तब से आज तक। और तीसरी नस्ल है, आगे हमारी चौथी नस्लें हैं, हम आपके साथ ता क़यामत खड़े हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और मुमल बहुत सारी थ्योरीज़ और बहुत सारे अच्छे बुरे वक्त इस पाकिस्तान ने देखे हैं। मैं चाहूँगा कि कश्मीर के हवाले से मैं आपका भी मौक़िफ़ ले लूँ कि वो जो उनके इतने मज़बूत इरादे हैं कि वो नहीं टूटे आज तक, जेलों में हैं, कई कत्ल गारत हो गई, बहुत सारी ख़वातीन के हस्बैंड शहीद हो गए, बहुत माओं के बेटे चले गए, लेकिन आज भी इरादे बड़े तगड़े हैं और बहुत दिल दहलाने वाली हम ख़बरें सुनते रहे हैं और उनके इरादे वाकई बहुत जो है वो पुरजोश हैं। और मैं ये कहती हूँ कि हम ख़वातीनों को, उन ख़वातीनों से जो है ना वो इंस्पिरेशंस लेनी चाहिए कि उनकी जो हिम्मत को जो है हमें सराहना चाहिए कि हमने जो है वो ऐसे ऐसे वक्त उनके साथ टूटते हुए देखे हैं। इंशाअल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी एक दिन और वो जो है हम उनके साथ खड़े हैं इस मौक़िफ़ पे और हम हमेशा खड़े रहेंगे। हम हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं ज़रा एडवोकेट मंजूर साहब से भी ये टेक ले लूँ। मंजूर साहब, कश्मीरियों के जो हक़ खुद इरादे के इरादे हैं वो नहीं टूटे, ये बिल्कुल क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बड़े मजबूत इरादे हैं उनके। उनके साथ क्या नहीं जुल्म हुआ, उनके जवान बच्चे शहीद कर दिए गए, उनके हस्बैंड घर तक जला दिए गए, उनकी फैमिलियों के साथ क्या नहीं हुआ। मगर इतने मजबूत इरादे और पक्के इरादे वाले हमेशा जीतते हैं और इंशाल्लाह उनको अल्लाह ने कामयाबी देनी है। और हम देखेंगे हमारी ही इसी जनरेशन में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और आगे बढ़ के पाकिस्तान भी इतना मजबूत होता जा रहा है कि वो इंडिया के ऊपर बैनुल अक़वामी तौर पे प्रेशर करा के इंशाल्लाह उसकी आज़ादी होगी और हमें भी यकीन इंशाल्लाह होगी। चले आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। असलम साहब, आप अगर जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होते? वैसे साजिद भाई, सवाल तो आपका बहुत ख़तरनाक है ना? इसलिए वो यूँ इसलिए मैं कि आपको पता है कि मैं खाली जर्नलिस्ट नहीं हूँ। नहीं, एक होता है ना कि यार इस शोबे से मुझे लगाव था, अगर मैं ये ना होता तो ये ना होता तो वो। हाँ, मैं अब आपको चले ऐसा कर, अगर मैं जर्नलिस्ट ना होता, अगर मेरे वालिद साहब, वैसे आपको पता है मेरा ताल्लुक है अस्करी ख़ानदान से, वालिद साहब मेरे आर्मी से रिटायर्ड है, रिटायर्ड कर्नल है। मेरा बचपन जवानी सारी मिलिट्री एरियाज़ में गुजरा, लेकिन इत्तेफाक में भी, और भाई तो मेरे खैर हैं, लेकिन मैं आर्मी की तरफ ज्वाइन नहीं कर सका। अगर हो सकता है मैं अगर थोड़ा सा मेरा जहन बनता तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में अच्छा मैं क्या बात है, बेहतरीन, सबसे ज़्यादा। और उसके बाद अब बहरहाल एजुकेशन आपको तो पता है वैसे बहुत टकराव नहीं है कहाँ एक रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ओबीडेंट एटमॉस्फेयर, कहाँ एक जर्नलिस्ट बागी माइंड। जी ऐसे असल मैं आपके पहले भी शायद प्रॉब्लम में बातें करता रहता हूँ, मैं छोटी छोटी बातें करता रहता हूँ। ये समझ कुछ जरासीम मेरे साथ, ये थोड़ी लिटरी समझ लें इसको, लिटरी ये समझ लें स्कूल लाइफ से है। मैं पिछले भी एक प्रोग्राम में मैंने एक दफ़ा बात की थी। ये उस ज़माने की बात है कि जब मैं एक गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा हूँ, मैं आर्मी के स्कूलों में पढ़ा, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में मैट्रिक जो है मैंने एक प्राइवेट स्कूल से किया, बहुत बड़ा नाम था स्कूल का। तो वो ज़माना था जब भुट्टो साहब ने जो है ना वो प्राइवेट स्कूलों को अपनी तहवील में लिया था, सरकारी तहवील में लिया था। तो उस एजुटेशन में, उस स्कूल में मैं 6वीं या 7वीं क्लास में था, तो उस फर्स्ट टाइम अखबार में मेरी जो है ना तस्वीर आनी शुरू हुई एज ए लीडर। तो मैंने ये बात इसलिए कि आपने कहा कि बहुत इतना फ़र्क है, तो ये समझ लीजिए जब एक और आप नुमाइंदगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जमात इस्लामी की कर रहे थे? हाँ, कॉलेज लाइफ से। अच्छा, अपनी स्कूल लाइफ से। अब जर्नलिस्ट है ना, हम सबको जानते हैं कॉलेज लाइफ कौन कहाँ से है।
اور ان کے ساتھ تربیت بھی میری وہیں انہیں کے ساتھ اٹھا بیٹھا. بہت اچھا نام, بہت بڑے نام میرے ساتھ اس وقت کراچی. اچھا ٹھنڈی وٹی کی کالجوں میں وہ جماعتی آ گئے بھاگو, بہت زیادہ, انتہا سے زیادہ. ہاں جماعتی بڑا مارتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ ہمارا آخری الیکشن جو تھا, جو ضیاء صاحب نے جو پابندی لگائی الیکشن پہ, ہمارا ہی آخری الیکشن تھا اور میں وہاں ایز اے جماعت. اچھا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے جو ہے وہ بچپن کے دوست ہیں, کچھ ایسا محسوس اصل میں کچھ نشستیں ہماری ایسی ہیں لگ چکی ہے نا ساجد بھائی پہلے. کے ساتھ بھی. میں ذرا ایڈوکیٹ منظور صاحب آپ نے ذکر کیا تھا ایک وکلا تحریک کا, اس وقت کے جو نام تھے, کرد صاحب تھے, اعتزاز صاحب, بہت سارے اور لوگ تھے, آپ بھی ہوں گے. اب کہاں ہیں ان کی اسپرٹ, اب کہاں ہے وہ اسٹرانگ وکلا تحریک؟ جی یہ کیوں تھم گئے, کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ بات یہ ہے کہ ہر وقت کے دور کے حساب سے نئے جنریشن آتی ہے, پھر ان کے لیڈر آ جاتے ہیں, مگر وہ کچھ ہمارے جو اب لیڈر ہیں آج کا, عامر وڑائی لیڈر ہے, بالکل ان کو مانتے ہیں بھی. اس نے سندھ کے لیے جو کینال کے لیے لینڈ جو اتنی ہوئی تھی اس کے لیے سکھر میں جا کے انہوں نے ایک بہت کامیاب دھرنا دیا. آ چکے ہیں, میں نے ان کو ان دنوں بلایا تھا. جی جی, تو وہ انہوں نے کامیاب دھرنا دیا. آپ کو پتہ ساجد نہ بلایا. ہاں جی بالکل, انہوں نے کامیاب دھرنا دیا اور ایک جان آئی دوبارہ وکلا میں کہ جی ہمارا کوئی لیڈر اب آ رہا ہے جس کے پیچھے ہم لگ کے دوبارہ اس ملک کے لیے کوئی بہتر کر سکتے ہیں, اور ہم اس حکومت کو, ان حکمرانوں کو اس ملک کے لیے اچھا کرنے کے لیے کہیں جھکا سکتے ہیں. اچھا سر, کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری جو ہوتی ہے, کسی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے, ایک ملک ہوتا ہے, اس کو چلانے کا سب سے اوپر والا ادارہ ہوتا ہے, سب سے فرسٹ جوڈیشری آتی ہے. لیکن ہم یہاں پر اگر دیکھے جائیں تو یہاں پر تو سب سے پہلے گورنمنٹ آ جاتی ہے, اور باقی سارے جو ہے وہ جوڈیشری تو سب سے نیچے ہے شاید. ایسے کیوں ہے؟ آپ کی اچھی سوال آپ نے کیا ہے. ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ایک علیحدہ پلر ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ علیحدہ پلر ہے. ان سب جو بھی ادارے ہیں ان کے اس کے اوپر جوڈیشری ہے. بالکل, اس کے اوپر جوڈیشری ہے کہ کوئی ادارہ, کوئی حکمران کوئی غلط کرتا ہے تو جوڈیشری جو ہے 199 کے تحت ہائی کورٹ کو پاور ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لے کے. آپ کے سامنے 2 وزیر اعظم ہمارے جوڈیشری کی نے, جوڈیشری نے گھر بھیجے, ان کے بعد ان لیگل ڈائریکشن پہ انہوں نے عمل نہ کیا تو ان کو گھر بھیجا گیا. سب سے اوپر جوڈیشری ہے. تنقید بھی ویسے ہوئی تھی, ٹھیک ٹھاک تنقید ہوئی تھی. مجھے تو یاد ہے افتخار چودھری صاحب پہ بڑی تنقید, جب گیلانی صاحب کو انہوں نے گھر بھیجا تھا. جی تنقید تو جی جو اچھا کام کرتا ہے اس پہ بھی ہوتی ہے, اور زیادہ اسی پہ ہی ہوتی ہے کہ جب کوئی زیادہ آگے اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے اس ملک میں ایسا ہوتا ہے. ویسے ایک شریف والا سوال پوچھوں, اجازت ہے؟ کیا ججز کو کالز آتی ہیں؟ یہ بالکل آتی ہیں. اب کمپرومائز ہو گئے, اسی وجہ سے یہ 26 امینڈمنٹ اسی وجہ سے آئی ہے کہ اس کو جوڈیشری کو بھی اپنے متحد کیا گیا. اب اپائنٹمنٹ جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کی, پہلے جو تھی سپریم جوڈیشل کونسل, اس میں آپ کے سیاستدان یا دوسرے نہیں تھے. اب میجارٹی ان کی 10 ان کے ہیں, جوڈیشری کے 5 یا 6 ہیں. اگر اس کو ایسے کہیں, اب مجھے آپ حکومتی نمائندہ آپ نہ کہیے گا کہ آپ لوگوں کا وہ جو ایک ہولڈ تھا اس کو موجودہ حکومت نے کہا کہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا, پورا نہیں دیں گے تمہیں, ہے نا؟ میں تو کہتا ہوں کہ پورا ہی حکومت نے لے لیا, آدھا بھی نہیں ہے. میں تو اس طرح کہوں گا, ٹھیک ہے, پورا ہی گورنمنٹ کو دے دیا. اسی لیے جن کی گورنمنٹ اوپر آ جاتی ہے وہ ملک پھر نیچے چلا جاتا ہے, جہاں جوڈیشری کا ہولڈ ہوتا ہے. جی میں نے آپ کا سوال اچھا ہے. میں نے پہلے یہ کہا کہ جب اپنے یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے نا, یا جو ہمارے حکمران ہیں, وہ اپنے مفاد کے لیے جب کسی ادارے کو ختم کرتے ہیں نا تو پھر ملک کے لیے نقصان دہ, ملک کے لیے نقصان ہے. چلیں جی, ایک وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد ہم آپ کو پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی کوارڈینیٹر میاں خرم صاحب سے ملوائیں گے. آپ کی بھی اپنے جو صحافی بھائی ہیں ان کے لیے بڑی جد و جہد ہے اور آپ مسلسل کر رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے شو میں بہت سارے لوگوں سے آپ کو ملوائیں, ڈفرینٹ مکاتب فکر سے انفارمیٹیو شو آپ تک پہنچائیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ چونکہ ہر کسی کا فارمیٹ ہوتا ہے نا, کوئی مارننگ شو میں بیٹھ کے کھانے بنا رہا ہے, مہندیاں لگا رہا ہے, کھیل کود کر رہا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے انفارمیشن کا باعث بنے, اور پھر انفارمیشن ایسی آ کے بور بھی نہ ہو. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں.
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद, और हम खुश आमदीद कहेंगे PMC पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मरकज़ी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मियां खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। सर आपको खुश आमदीद कहेंगे मियां साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। मॉर्निंग शो में सुबह सुबह पहुंचना ऑन टाइम मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। मैं ये चैलेंज रोज़ एक्सेप्ट करके पहुंचता हूं, हफ्ते में 2 दिन सॉरी, लेकिन अल्लाह पाक हिदायत दे हमारे इन हुक्मरानों के ये ट्रैफिक का मसला कम से कम हल करें। और चूँकि हमारे साथ मोहम्मद मिर्ज़ा मौजूद हैं और आपकी भी बड़ी एक अच्छी जो सक्सेसफुल हिस्ट्री और ट्रैवल रहा है आपका, ये जो जर्नी रहा है, मैं जब आपका प्रोफाइल देख रहा था तो बड़ी मुझे खुशी हुई। मैंने कहा चलें यार, एक लेडी डिफरेंट फील्ड में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। अब जरा आते हैं ना थोड़ा सा कुछ अजीब व गरीब सवालात की तरफ, क्योंकि आप लेक्चरार भी हैं जी, तो व्हेन यू डिलीवर योर लेक्चर तो मासूमाना सवाल भी करती होंगी वहाँ बच्चियाँ बच्चे। बिल्कुल आपसे भी हुए कभी बहुत कि यार ये क्या पूछ लिया इसने? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कहूँगी ये लोगों, चूँकि मेरा ताल्लुक मीडिया साइंसेस से है और मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन उसी में की है, तो ज़्यादातर अमूमन जो बच्चे आते हैं बैचलर्स में, सबसे पहले उनका ये सवाल होता है कि हमें जब यहाँ एडमिशन मिला तो हमारी पूरी फैमिली ये समझ रही थी कि हम शायद चैनल पे आने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ, हम शायद एक फेस हैं। तो लोगों को पहले तो इसकी अवेयरनेस नहीं थी कि मीडिया साइंसेस जो है वो एग्जैक्टली किस तरीके की है। अच्छा, वैसे एक इख्तलाफी राय सबकी हो सकती है, इख्तलाफ रखा जाए, अच्छा है, जमहूरियत का हुस्न है और फिर उससे बहुत सारी चीज़ें निखर के आती हैं। मैंने तो ये भी शिकवे सुने हैं, जैसे आपने एक पहला कहा कि मैं तो बस जाऊंगा और फिर मैं टीवी एंकर बन जाऊंगा, मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा, बहुत सारी विशेष लेके बच्चा आता है, लेकिन उसको लगा दिया जाता है कि ये कैमरा है, ये ऐसे चलता है, इसको ऐसे एंगल लिया जाता है और इसको कहते हैं ट्राइपॉड। यार आपने 2 साल उसके इसी में ज़ाया करा दिए और मीडिया के बस उसको वो स्टीरियोटाइप्स पढ़ाए जाते हैं। 2 सालों में आपसे अच्छा खासा अमाउंट यूनिवर्सिटी ने ले लिया, क्या आपने ठीक किया? अच्छा, ये जो पर्सपेक्टिव है ये थोड़ा सा ऐसा है, चूँकि हमने करिकुलम्स भी डिज़ाइन किए हैं, तो हम जब इस करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, तो हम उनको थोड़ी सी एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे ओरल कम्युनिकेशन, बिजनेस, किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, दीज आर द बेसिक कोर्सेज, ठीक है, जो इनिशियल लेवल पे दिए जाते हैं। जब दे आर कंप्लीट देयर बैचलर, वो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो तब तक तो आपको बहुत कुछ, आपको नहीं लगता कि उसमें हमें करिकुलम में चेंजिंग्स लानी चाहिए? हम वो हक अदा नहीं कर पा रहे, हम उसको मीडिया साइंस में बैचलर तो करवा रहे हैं, लेकिन जब वो इस फील्ड में आएगा ना हमारे पास, जब मेरे सामने खड़ा होगा, मैं उसको बोलूँगा अभी तुम स्टूडेंट हो। अच्छा, ये डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है, ठीक है। और जो HSC से अप्रूव्ड करिकुलम है बैचलर्स, अब यूनिवर्सिटियां तो मेरे पीछे पड़ जाएगी, ये हमारे बच्चों को खराब कर रहा है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉपर एक करिकुलम डिज़ाइन होता है, ये प्रॉपर बहुत स्ट्रक्चराइज्ड है, ठीक है। इसमें बच्चे को हर तरह की, जैसे चंक ऑफ नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और इसके अंदर फिर स्पेशलाइजेशन भी होती है, जैसे कि एनिमेशन में, टीवी में, और बहुत सारी एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत सारे, अब तो AI जो है वो आ गया है। अच्छा मोबाइल, मैं एक और बात कहूँगी कि हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को नहीं हम इल्ज़ाम दे सकते, हमारा जो मीडिया है वो भी तो हमारे नए चेहरों को आगे नहीं लाता, हमारी जो न्यू जनरेशन है उनका टैलेंट वो भी तो आगे नहीं लाता, वो स्पेस ही नहीं देता। अब चूंकि इन्होंने, सर आप मियां साहब इस पे अच्छी रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारी होस्ट ने सब मीडिया को आड़े हाथों ले लिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वो मीडिया वाले डोर इसके खोलेंगे चैनल्स के, वो कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। जी किया इन्होंने ना वो गुनाह। देखिए बात ये है कि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात है ना, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियां जो भी फारूक तहसील हैं, इस वक्त हमारे पास स्पेस नहीं है, ज़हनों में स्पेस नहीं है, जबकि ग्राउंड में बहुत ज़्यादा स्पेस है। मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जितने भी फ्रेश बच्चे बच्चियां जैसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उनके एक ख्वाब होता है कि हम जाएंगे
और किसी चैनल पे न्यूज़ कास्टर बनेंगे, डिफरेंट जो है ना शोबाजात में अपनी जो है ना वो, लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना तो उनको वो स्पेस नहीं मिलता। और इसमें हम लोग ही कसूरवार है, वो बच्चे बच्चियां नहीं है, वो बच्चे बच्चियां तो ख्वाब सजा के आ रहे हैं। और हमारे जो और जब ग्राउंड पे जब उनका वो जहाज जब लैंड करता है तो वो धमाका होता है, वो तो जाते हैं ना किसी भी चैनल में। हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो बड़ी लिमिटेड है, ठीक है जी। हमारी सोचें बड़ी महदूद हैं। एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ऐड करूं मैं जी, जब मैं आया मीडिया में तो मैं तो शौक में आया। मैंने मास्टर्स किया इसमें पॉलिटिकल साइंस में। जब मैंने ये किया तो फिर मुझे बोलने का बड़ा शौक था। मैंने कहा यार मैं नॉलेजेबल आदमी हूँ, बाकी जहनियत का आदमी हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मुझे मीडिया में आना चाहिए। जब मैं आया तो स्पेस ही नहीं जी। अरे भाई मुझे स्पेस तो दो, मैं काबिलियत रखता हूँ। और जब आप आते हैं ना तो आपसे पहले क्वेश्चन किया जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। हम तो फ्रेश होते हैं, फ्रेश एक्सपीरियंस तो नहीं लेकर आ सकते ना। इसकी आप इस पर रोशनी डालें और इस पर उन लोगों पे तनकीद करें कि और उनको आप उनकी सरजनिश करें। मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि यार आप जब तक स्पेस नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा टैलेंट है या नहीं। असल में इसमें थोड़ा सा जो है ना यूनिवर्सिटीज का भी जो है ना किरदार है, ठीक है। आप देखिए जैसे ही आपके पास एक नया बैच आता है तो आपको चाहिए कि मुख्तलिफ जितने भी डिफरेंट जो है ना, जैसे कोई भी अदारा, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं, जितने भी अदारे हैं मीडिया हाउसेज हैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन किया जाए। उनको बताया जाए कि जनाब हमारे पास 50, 100, 200, 300 बैच से फ्री होंगे और ये आपके पास इतने भेजेंगे, दूसरे के पास इतने भेजेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं और जो यूनिवर्सिटीज हैं दोनों अपने अपने मफादात लेके चल रहे हैं, अपना काम कर लेते हैं जी। यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि वो सिर्फ फीस कलेक्ट करती हैं, डिग्री देती हैं और उसके बाद कहती हैं कि बेटा हमने आपको अच्छी तालीम दी, अब आप मैदान में जाएं और जाके अच्छे शाहसवार बने। लेकिन जैसे ही मैदान में आते हैं हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं, हमारे जो बड़े बड़े सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वगैरह वगैरह जो भी इसमें जो है ना आप समझते हैं जो है ना, अच्छा वो इतने एजेड होते हैं कि जब आप उनके सामने जाते हैं तो पहले तो आपको कबूल ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जी आप आए कहाँ से हैं। वो बच्ची इतना कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आप आए कहाँ से, आपने कहा ना, जैसे अभी वो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जब एक साहब जा रहे थे ये मुल्क छोड़ के या घूमने फिरने कहीं पे भी दुनिया में जा रहे थे तो हमारे जो एयरपोर्ट पे खड़े हुए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनके अजीब व गरीब सवाल थे। मैंने एक अजीब सा, मैंने कहा सर मुझसे भी एक सवाल हुआ था। बोले क्या? मैंने कहा वो साहब वर्दी में पहने मुझे कह रहे हैं क्यों जा रहे हो। What nonsense, क्यों मतलब क्यों जा रहे हो? क्या सब कुछ मेरे पे लिखा हुआ है पासपोर्ट पे, आप मुझे क्यों जा रहे हैं आप साजिद साहब, तो मैं आपको क्यों बताऊं मैं क्यों जा रहा हूं? हालांकि वीजा कैटेगरी मौजूद है, ऊपर लिखा हुआ है। हमारे लिए मैं वही कह रहा हूं, हम एक उससे निकलते हैं तो हमारी जो आगे वाली चीजें वो मुश्किल बना दी जाती है। अगर एक स्टेप हम आगे जाते हैं ना तो वो आगे वाला स्टेप बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है ना, बड़ी माजरत से मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ, हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है ना यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा है लेकिन ज़हनों में स्पेस नहीं है। जब आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, किसी को इज्जत नहीं देंगे, आप इसकी मिसाल मैं यूं देता हूँ कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है आप उसको ना पानी पूछते हैं, ना चाय पिलाते हैं, ना खाना खिलाते हैं और आते ही पूछ लेते हैं कि जनाब आए हैं तो जाएंगे कब। तो वो बेचारा क्या बताएगा कि मैं चाय पीऊंगा, खाना खाऊंगा। अच्छा, और इनसिक्योरिटी भी है कि दूसरे बंदे को लगता है कि ये अगर ये वाला टैलेंट आ गया तो मेरी शायद जगह चली जाएगी। इनसिक्योरिटी भी होती है। बात फिर वो ज़हनों की है, हमारी सोचें बड़ी महदूद है। मेरी कोशिश ये होगी कि जिस कुर्सी पे, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ मेरी जगह दूसरा ना आए। हालांकि वो मुझसे ज्यादा बेहतर हो सकता है, अहल हो सकता है। वकील साहब भी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स आ गए, नौजवान आ गए। अच्छा, अगर हम लोग उनको स्पेस नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? मायूस होके जब वो मुल्क छोड़ते हैं तो हम उनको कहते हैं कि नहीं जनाब उब्बुल वतनी किधर है आपकी फलां किधर है। तो हम ये कभी नहीं कहते कि हमने उनको डिस्करेज किया है, हमने उनको स्पेस नहीं दिया। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल हमेशा उन जितने भी स्टूडेंट मीडिया में सवाल हुआ मुझसे, वो बताऊं, मुझे याद आ गया अभी। एक मैं इंटरव्यू में था तो मुझे वो बड़े मियाँ जैसे आपने कहा वो बुजुर्ग बैठे हुए जी, साजिद साहब इधर क्या लेने आए हैं जी? मैंने कहा सर मैं आम और फल फ्रूट तो लेने आया नहीं हूँ यहाँ पे जी, ऐसा तो ना करें आप मुझे। बोला नहीं इधर स्पेस ही नहीं है, इधर बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं डिग्रियां हाथ में लेकर। मतलब वो भाई आप क्या ये कौन से सवाल कर रहे हैं आप?
असल में सर बात पता है क्या, देखिए सारे सीनियर्स जो है ना एक जैसे नहीं है, मतलब इसमें सबको लपेटे में नहीं ले सकते, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना हमारे ज़हनों की वो ऐसी है। हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है कि हम दूसरे को इज्जत देना ही नहीं चाहते। अगर आपसे कोई सवाल करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए, आपसे अच्छा अरे माशाल्लाह आप भी आ गए, या कहीं किसी आप मतलब चैनल में जाए, अरे भाई आप भी इधर, तो ये सवालात ऐसे हैं चुभने वाले हैं, ठीक है, आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करते हैं, बजाय वेलकम करने के अरे बिस्मिल्लाह आप आए, खुशामदीद, बैठे, क्या लेंगे, चाय और कॉफी। फिर मैं तो माजरत के साथ वो जो लोग हैं ऐसे सवालों से आप इज्तनाब करें, कोशिश करें कि ये सवालात आप ना करें। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं मुझ जैसे, हमें तो इस तरह के सवाल पसंद ही नहीं है, हमारा फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हम कहते हैं यार ये कैसा सवाल आपने किया। तो ऐसे सवाल से दूर, क्योंकि पर्सनल आते हैं, ये टोंट में आते हैं कि आपने किसी की पर्सनल लाइफ पर हिट किया, इससे गुरेज करें पूछने के लिए। और बहुत कुछ एडवोकेट साहब, आप चूँकि माहिर कानून हैं, आप अभी चूँकि मायूस हैं 26वीं अमेंडमेंट के बाद, तरमीम के बाद, फिर 27वीं की भी गूंज चली थी लेकिन थम गई। क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? नहीं, बस बैठे रहना है। कहते हैं ना, बनाने की फुर्सत ना हो मगर हर दिल में शीश महल तो होते हैं। वो कोशिश तो करना चाह रहे हैं, करेंगे भी सही में भी, क्योंकि हमने 26 पे उनको कुछ नहीं किया, कोई ज़्यादा एजिटेशन नहीं हुई, उस पर उनको कोई पीछे से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, तो इस वजह से वो 27वीं भी के लिए वो तैयार हैं, करेंगे सही, पर अल्लाह बेहतर करेगा। इतना भी नहीं है कि हम डिवाइड रहेंगे, कितने टाइम तक रहेंगे, नहीं, हम यूनिटी हमारी आएगी वुकला में। अब जो यंग वुकला भी आए हैं, ये अभी सिंध बार काउंसिल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो हो रहे हैं इलेक्शन सॉरी, तो वो 1 नवंबर को है। पहले तो उन्होंने जो है मैनेज किया हुआ था, सिंध बार काउंसिल है, पंजाब बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, तो सारी बार काउंसिल एक ऐसे जैसे कि एक डॉक्टर की काउंसिल होती है, इसी तरह हमारी वुकला की भी, जहाँ पे हम वुकला के लाइसेंस इशू होता है, हमारे कंडक्ट देखा जाता है, हमारे लिए वहाँ पे ही सारा इदारा वही हमारा लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो वो उनके पास थी बॉडी, वो प्रेशराइज भी कर लेते थे, किसी वुकला ने उनके खिलाफ गया। एक आम आदमी का सवाल भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आम आदमी कहता है सर अब मुझे एक वकील साहब तंग कर रहे हैं, मुझे हिरासा कर रहे हैं, मुझे थ्रेट कर रहे हैं, तो उस वकील का मैं क्या करूँ? और अगर मैं वकील का कुछ करता हूँ तो वो मुझ पर केस कर देता है, तो सर वकील का भी इलाज बता दें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, कुछ वुकला हमारे में काली बेड़ियाँ भी हैं, हर किसी में, हर किसी जगह पे। तो अगर वो सिंध से बिलोंग करता हो, सिंध बार काउंसिल में ना, सिंध बार काउंसिल में नहीं, वहाँ अगर कह रहे कंप्लेंट करें वहाँ भी उसके अपने नहीं अच्छा होता है। अच्छा, इतना भी नहीं है कि जहाँ पे बिल्कुल लाकानूनियत हो जाएगी ना तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उस पे भी, वहाँ पे वकील पे भी होता है, उसका जो है लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, वो अदालत में अपीयर नहीं हो सकता। तो और अब तो और ज़्यादा वुकला के खिलाफ जो है ना चल रही है ये कि हम लोग खुद भी कर रहे हैं कि भी हमने अपने जो प्रोफेशन है उसको जो अच्छा एक एज मिला था वो ख़त्म नहीं करना है। ख़त्म। मैं एक वक्फे का कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक केस में आ चुका था। एक साहब ने मुझे कहा कि मेरी से जान छुड़वाएं, मैंने उस साहब वकील साहब को कॉल की, वो कह रहा भाई मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगा, मेरा इसने कोई वकालतनामा साइन किया है, अब मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा, और आप साजिद साहब इस रास्ते से हट जाएं। मैंने कहा मैं जब खड़ा हो जाता हूँ मैं नहीं हटता आखिर तक, वो इनोसेंट है, मजलूम है, गरीब है, आप उसको तंग ना करें। ये मुसलसल हमारी जद्दोजहद चलती रही, बिल आखिर हमने उसको इंसाफ दिलवाया एक वकील से। चलें जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और फिर एक टर्म हम यूज़ करते हैं
सोसाइटी के रोल मॉडल, तो क्या जो टीवी एंकर होस्ट हजरात हैं जो डिफरेंट शोज़ करते हैं, क्या वो सोसाइटी के रोल मॉडल हैं? ये आप लोग डिसाइड करेंगे। फिर एक रोल मॉडल है माहिर कानून, फिर एक रोल मॉडल है टीचर, बहुत सारे शोबे हैं ना। अब मोमल समझ गई ये रेडार ये मेरी तरफ आएगा। क्या आज चूँकि आप हमारी आने वाली पीढ़ी की तरबियत कर रही हैं, क्या वो टीचर्स जिनको बच्चा वो रोल मॉडल देखता है, क्या वो टीचर्स अपने फ़राइज़ सही से सरअंजाम दे रहे हैं? जी बिल्कुल। टीचर्स जो है वो हमेशा मेंटोर्स रहे हैं, चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो, आपका चाहे आप बुढ़ापे में भी आ जाएं तो अगर वो टीचर हैं तो वो आपको जो है वो हमेशा कोई ना कोई उनकी जो बात है या उनकी कोई बताई हुई गाइडेंस है वो थ्रू आउट आपके लिए जो है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है। इसी तरीके से मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसे अब AI का दौर आ गया है तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि टीचर्स का रोल प्ले ख़त्म हो गया है। टीचर इज़ ऑलवेज अ मेंटोर, ठीक है। इमोशनली आपकी काउंसलिंग के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए टीचर का किरदार की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, AI के बारे में कहा गया है कि वो मतलब आपको बातें तो बता सकता है और सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं दे सकता। आपके जो दर्द है उस पे हाथ नहीं रख सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप ये कहें कि दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, AI शायद आपको दवाइयों के लिए भी गाइड कर दे, वो आपको आंसर तो दे देगा, लेकिन जैसे एक टीचर समझाता है ना वैसे आपको पढ़ा नहीं। इसी तरीके से बिल्कुल मैं कहूँगी कि जैसे डॉक्टर जो है जो इलाज वो कर रहा होता है कि अगर ये दवाई आपको रिएक्ट कर गई है तो आपने इसका ऑल्टरनेटिव ये निकालना है। मोमल का कोई रोल मॉडल? अच्छा, मैं जो है वो यूनिवर्सिटी जब से मैंने ज्वाइन की है अपने कॉर्पोरेट करियर के बिसाइड, मैं चूँकि डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट रही हूँ थ्रू आउट, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है और मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ भी काम किया, फिर मैंने इंटरनेशनली भी काम किया UAE में। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं अब भी सीख रही हूँ। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अब इस स्टेज पे आप आ गई हैं कि आप कहें कि ये रोल मॉडल है मेरा। जी, मैं ये कहूँगी कि मैं एज ए लर्नर और मैं अपने आप से जो सीखती हूँ चीज़ों से वो मैं जो ट्रांसफ़र कर रही हूँ नई जनरेशन के अंदर, आई थिंक दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। ठीक है कि आज जो मैं बच्चे को सिखा रही हूँ वो बच्चा सीख के आगे उसको ट्रांसफ़र करेगा। वोट किसको दिया? ना पूछें। क्यों? ये एक अंदर की बात है बस। नहीं, पता चले ना देखने वालों को कि बीबी ने वोट किसको दिया, उसकी उनकी फेवरेट पार्टी कौन सी थी। देखिए, मैं ये कहूँगी कि यंगस्टर्स जो हैं जो पर्सपेक्टिव देखते हैं, हो सकता है कि पार्टीज जो है वो मुख्तलिफ बेहतर हों, ठीक है। आपकी नज़र में आपने किसका चुनाव किया? मैं PTI की जो है वो फेवर में। बानी PTI, इमरान खान आपके फेवरेट लीडर हैं। जी, आहिस्ता से बोला नहीं, बोले जी है ऐसे बोले। चले ठीक है मियाँ साहब, चूँकि अब तो हम ये भी कहने से घबराते हैं कि हम वोट किसको दिया, आपने किसको वोट दिया मियाँ साहब? सर, इस इलेक्शन की बात कीजिए तो मैंने तो वोट किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैं स्पेशल असाइनमेंट पे था। और आपको पता है कि पोलिंग डे पे जो सहाफ़ी की पूरे दिन की मसरूफियात होती हैं वो अवाम तक आगाही होती है, तो वोट तो किसी को नहीं दे सके, इसको कह सके ना एहली कह सकते हैं हमारी जो है ना, लेकिन अगर देते तो किसको देते? देखिए, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में इस वक्त कोई भी आइडियल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और मैं बाइकाट करता। अच्छा, मेरा मानना यह है कि देखें, कैदी नंबर 804 हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनके लीडरान हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है उनके लिए उनकी आवाज़ नहीं है, उनकी नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना सर्वाइविंग जो है ना वो अपना वो कैरियर जो है ना उसको लेके चल रही है। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें सिंध के अंदर तो आप देखें कि बिलावल ही उनका फ्यूचर है, और अगर PMLN की बात की जाए तो मरियम नवाज साहिबा ही उनका फ्यूचर है, और अगर कैदी नंबर 804 की बात की जाए तो अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भले पॉलिटिकल कहीं उनका रोल प्ले नहीं है, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट पे CM चेंज हो जाता है। तो बात ये है कि ये तमाम मुर्सी सियासत जिनके खिलाफ ये बातें, किस्से, कहानियां और जमहूरियत का राग अलापते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किताबों तक है। अगर प्रैक्टिकली डिलीवरी की बात की जाए, कहीं उन्होंने कहीं कुछ डिलीवर नहीं किया। तीसरा टर्न्योर KPK में PTI का है, इसके अलावा तीसरा टर्न्योर यहाँ पे 17 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को।
PMLN को जनाब एक टेन्योर के अलावा जो है मियां ना, खुरम साहब लग रहा है सबसे नाराज हैं। वैसे मियां आपका साहब- वोट दलिया देखिए होगा। मैं नाराज वो तो नहीं, पक्का। मैं नाराज नहीं हूँ, हाँ। मायूस भी नहीं हूँ। इस मुल्क से मैं एक चीज कहूंगा कि ये मुल्क जब तक तरक्की नहीं करेगा, हम लोग इस मुल्क से जब तक लॉयल्टी अपनी नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, और बिल्कुल। इस मुल्क की जब तक बका के लिए काम नहीं करेंगे, हमें पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर होकर सोचना ओके, पड़ेगा बिल्कुल। और ठीक है। पाकिस्तानी शहरी होने के नाते सोचना पड़ेगा, जबरदस्त। फिर हम तरक्की करेंगे ठीक है। एडवोकेट मंजूर साहब, किसको वोट किया? जी, इस दफ़ा बाय चांस कह लो कि मैं जो है कराची में था, मेरा वोट है डिस्ट्रिक्ट खैरपुर सिंध से। ठीक है। मेरी फैमिली वहाँ रहती है, मेरा ब्रादर हालांकि वहाँ पे टाउन पीपल्स पार्टी को ही वोट दिया होगा आपने। मैंने यहाँ पे था, दे नहीं सका, नहीं तो देता तो मैं पीपल्स पार्टी को ही देता। तो वैसे आपका पीपल्स पार्टी की मैं तरफ दे चला नहीं गया सका, होगा वोट। मेरा डल भाई गया नहीं, मेरा मतलब ये कि डल गया होगा। आपका जो सॉफ्ट सीधी कॉर्नर बात, है वो हाँ। पीपल्स पार्टी के लिए है। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर इस वक्त नहीं है, जो मैं कराची के मतलब ये हालात आखिरी देख रहा हूँ, वोट था जो पीपल्स पार्टी का, जो ये आखिरी रोड वोट था पीपल्स पार्टी का। आखिरी वोट, बिल्कुल। आप फिर किसको देंगे? आगे देखेंगे कि कौन सा अच्छा लीडर आता है, कोई नया क्या पता आ जाए आपका हमारे फेवरेट मुल्क लीडर में। कौन है? फेवरेट लीडर मैं तो इस वक्त जो कहूंगा कि कैदी नंबर 804 ही है। ओए भाई, ये उसकी तो- रीजन है अच्छा, उसकी रीजन क्या है? कि उसके पीछे इतनी एजेंसियां लगा के, उनके पीछे सब कुछ लगा के उसके खिलाफ कोई करप्शन नहीं ला सके। ला सर वो नहीं घड़ी सके, बेची थी ना सर। सही। सर घड़ी कोई इतनी बड़ी करप्शन नहीं है, अगर हम उसको सर, मान लोगों ने भी लें। पूरा मुल्क बेच दिया, आप घड़ी बेचने हाँ, की बात कर दूसरे- रहे हैं। दूसरे- चलो, यहाँ हाँ। भी एक सर उनके सपोर्टर बैठे नहीं। चल, तो ये वो पूरा मुल्क क्या बना, यानी कि सब हमें बेच हमें दिया, बेच दिया, पूरी हमें आवाम को बेच दिया, दिया। इंसानों को बेच तो दिया। एक उसके घड़ी लिए उसे घड़ी कोई बेची, घड़ी नहीं सस्ती बेच ली, सकते घड़ी क्या? ली, घड़ी बेच दूसरे सकते पैसों से ली सर, थी, चलो चोरी तो सस्ती ली। चोरी है ना नहीं, सर। चोरी नहीं ली, पैसे दे के ली थी, सस्ती ले ली थी। सर, चलो आप- हम मान लेते। मैं इसको कंक्लूड, जब पूछा गया खान साहब एक ही की था तुसी, तो उन्होंने कहा कि जी तो क्या हुआ, मैंने वो सड़क तो बनाई है। सड़क वो जी। भाई आपका काम करने का नहीं है मियां साहब, सही ये तो देखिए, सपोर्ट में आ गए बात सारे, ये है- आप भी तो नहीं आएंगे कहीं। बुनियादी तौर पर हाँ। हर किसी का राइट है, वो किसी को चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, बुरा हर लगे, इंसान बिल्कुल। की जो भी पाकिस्तानी शहरी है उसका अपना राइट है। लेकिन कैदी नंबर 804 के पास KPK में जो हुकूमत गुज़श्ता 3 अतवार से हो, अभी भी उनके पास है सिटिंग गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। और ये अगर फिर इतने सिर्फ चाहने वाले कहाँ अगर से आ सिर्फ गए? बातों की बात की, देखिए बात फिर वही है, जिसका बयानिया बिकता है, जो अच्छा बोलता है उसका बयानिया बिकता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती मतलब अच्छा से- बयानिया बेच लेते हैं खान साहब। खान साहब का बयानिया बड़ा अच्छा है। देखिए वो मैं इस पर अच्छी comment फंड रेजर अच्छा, है बस, हाँ, पूरे ठीक है, पाकिस्तान चलो, में हाँ। जितना बड़ा ये इमरान खान डिबेट फंड रेजर वैसे है। टाइम बहुत कम है मियां इससे- साहब, वरना ये जी, डिबेट जी, बहुत जी, अच्छी होती है, ये हाँ। बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लास्ट में हम कश्मीरी भाइयों के साथ हम 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर दोनों दिन हम आपके साथ यकजहती में खड़े हैं। तो मैं आखिर में 20-20 सेकंड है मेरे पास, मैं कैटेगरी की एक मैसेज चाहूँगा कश्मीरी भाइयों के लिए। सर पहले आप बीबी। मैं ये कहूँगी कि हम सबको जो है वो इकट्ठे होके ये जो 2 दिन हैं इनके लिए खड़े होना चाहिए और इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि हम इनके साथ खड़े हुए नहीं हैं सिर्फ लफ्ज़ों में, बल्कि हम फिज़िकली भी, मॉरली भी, इमोशनली भी, हर लिहाज से खड़े हुए हैं। और हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक वो इससे आज़ादी नहीं पा लेते। सर मंजूर साहब। जी, मैं भी यही डॉक्टर साहिबा की तरह कहूँगा, हम सब पाकिस्तानी, हमारे इदारे, हम कौम, बाइसियत कौम, हमारे मुसलमान भाई हैं। मैं तो कहता हूँ कश्मीरियों के साथ क्या, हमें तो फ़लस्तीन के साथ भी खड़ा होना चाहिए, उनके लिए भी हमें एक आवाज़ बनना मुझे चाहिए। लग रहा है एडवोकेट साहब में पीटीआई की रूह आ गई। नहीं जी, PTI नहीं, हम इंसानियत की रूह है, हम इंसानियत इंसानियत के की रूह उस है, जी, हिसाब से बिल्कुल। कह रहे हैं कि जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, हाँ। उनके साथ मर्ड हो रहे हैं। हुकूमत को और फील्ड मार्शल को अप्रिशिएट करें ना। हम गए, हम हमने कर- हमने हमने फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए, हमने अमन मुआहदे करवाए, ये भी तो हमने ही किया ना नहीं जी, सर। मैं इसको तो फिर हम इनको नहीं कहेंगे, ये तो अमेरिका ने सारा कराया, इनको अमेरिका ने बुला कराया, के बिल्कुल, इनसे हाँ। मनवाया भी गया कि आप भी उसको इसराइल को एक्सेप्ट करें। मैं तो जो सीधी नहीं सी कर बात सकते, कभी भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हम। जी, मैं एक तरह से कर लिया है ना, कैसे नहीं कर सकते कि उनके लिए उन्होंने कहा कि उसको खत्म कर, इसराइल फ़लस्तीन में जो उनके जो वहाँ पे थे उनको इदारे को खत्म करने के लिए चले, जो कह- मैंने देखा पता नहीं किसने देखा। चले जी मियां साहब लास्ट में। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जब यूनाइटेड नेशन में गए तो पाकिस्तान उस वक्त उस पोजीशन में था कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग जीत चुका था। लेकिन यूनाइटेड नेशन में जाने की वजह से वहाँ रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि खुदा के लिए हमें पाकिस्तान से बचाएं, पाकिस्तान हमारा जो है वो बेड़ा गर्क कर देगा। इंडिया जो काबज हो रहा था कश्मीर पे, ठीक है जी, 27 अक्टूबर या 26 अक्टूबर हम सिर्फ अब बराए नाम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
हम कश्मीरियों की बात ज़रूर करते हैं। अगर फ़लस्तीन का मसला हल हो सकता है तो कश्मीर का भी मसला हल हो सकता है। मैं फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब और जितने भी उनके अमीर मुकाम साहब इस वक्त जो है ना इसके कश्मीर अमूर के जो है ना वो हैं मिनिस्टर, उन सबसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा सेमिनार्स करने की बजाय यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद थी उस पर अमल दरामद कराया जाए। और ट्रम्प जो इस वक्त पीस मतलब वो 8वीं जंग रोकने जा रहे हैं और पता नहीं कितनी जंगें रोकेंगे, एक कश्मीर काज पे भी जो है ना वो जंग जो है ना रोक लें। कश्मीर काज मुसलमानों की नहीं इंसानों की है। वहाँ खाली मुसलमान नहीं बसते, हिंदू नहीं बसते, सिख नहीं बसते, बल्कि तमाम कौमें बसती हैं। खुदा के लिए अगर आप में इंसानियत है, अगर ट्रम्प वहाँ फ़लस्तीन में अमन करवा सकते हैं, पाकिस्तान अपना अकलीदी रोल प्ले कर सकता है तो कश्मीर पे भी कर सकता है। आप सबसे एक ही बात करूंगा, इंसानियत के लिए कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे और अमारा सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नर्म ठंडी और पूरा सुकून हवा का झोंका। चाय का एक कप इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए